Yes. I, on behalf of Lions Club of Guwahati Elite, would like to welcome each one of you to this webinar. The concept of lionism is where there is a need, there is a lion. And since a need was felt by the business community at large to understand the complications of these changes, so we Lions have taken this initiative to organize this webinar basically, and we have an excellent setup of speakers with us who shall be guiding us through the entire process. So the details of the program we shall be discussing at a later part. I think I shall end my welcome address here. Thank you, sir. Thank you so much. May I request our President Lion Daljit Singh to kindly address the House and welcome the House. Daljit ji. I think. Thank you, Ayush ji, Ayush Sharaf of Lions Club of Elite for organizing such a seminar. We the Lions, with a motto, we serve. And this year, the Lions Club of Guwahati, with the service to humanity motto is to the humanity. The seminar is on the packaging, the GST which they have imposed, they are trying to put up on the package industry, hotel industry, transport industry. And the confusion is there among the people, the general public, the impact on the economy and the prices that increase, it affects the public in general. And as a result, there's an inflation due to this. And we hope the seminar will go in a long way to apprise the people of the GST which is going on. Thank you, everyone. Thank you, Daljit ji. May I now invite CA Neha Beria to kindly introduce our panelists before this gathering. Thank you, Manoj. Good evening, everyone. I'm fortunate enough to introduce the three expert speakers that we have today. First, I take this opportunity to introduce CA Vikash Kumar Banka, who is a practicing chartered accountant with 21 years of experience, especially in analyzing legal provisions from a practical perspective. He provides consultancy to various business houses on a wide range of issues. He has been a part of various training sessions, including the training of audit team officers of Bihar Commercial Taxes and Commercial Tax Department of West Bengal. At present, he is chairman of Membership Growth, Database Management, Social Media Subcommittee of Association of Corporate Advisors and Executive, a member of Indirect Tax Committee of DTPA, and was a member of editorial board of Vipka e-magazine eZine. He has contributed to various matters related to GST, and he has empowered us in his various write-ups. So we are glad to have you in this session. Next, I'll take this opportunity to introduce the second speaker of today, which is CA Vikash Kumar Agarwal. He has been the past chairman of Guwahati branch of ICAI. He is a practicing chartered accountant with about 20 years of experience. He is a member of GST Grievances Redressal Committee formed by Ministry of Finance, Government of India for the state of Assam. He is chairman of Indirect Tax Committee of Tax Bar Association Guwahati. He is a member of study group on GST for Northeastern region formed by the ICAI. He is also actively involved in training various GST officers and has contributed write-ups on practical issues of GST. Since this webinar is being organized by the Lions Club of Guwahati and Lions Club of Guwahati Elite, I would also like to mention that he has served as the president of Lions Club of Guwahati City. He has served and was awarded as the best treasurer of Lions Club of Guwahati City. He has also served as zone chairman in Lions District 322D and is presently the district coordinator CSR and statutory compliance district 322G. We welcome you, sir. Next, we have a panelist, CA Ragini Goyal. Ma'am, she's a practicing chartered accountant, serving as a treasurer, presently serving as a treasurer of Guwahati branch of ICAI. She is a member of the National Executive Committee of All India Federation of Tax Practitioners and is a member of Indirect Tax GST Representation Committee of the Federation.
She is a member of Customs, Excise and Service Tax Bar Association, Kolkata. She is a life member of Confederation of GST Practitioners of India. She has been nominated as Honorary Chairperson of Taxation and Policy Matters Committee of FICCI, Assam State Council. She is an empaneled faculty of ICAI for GST certification course and other training programs in Eastern India. And she has addressed a number of conferences, seminars, webinars, and workshops on various subject matter. Ma'am, we are glad to have you on board. Thank you so much. You are mute, Manoj ji. Ayush, now over to you to take in charge of this entire session now, and let us begin. Thank you so much, sir. तो आज का जो ये वेबिनार हमने ऑर्गेनाइज किया, बेसिकली इन दिनों में जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत ही बहुत बड़े बदलावों से हुई थी, क्योंकि 1 जनवरी से कुछ व्यापक बदलाव किए गए थे जीएसटी कानून में। उसके बाद अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उसमें कुछ बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए और उन्हें शीघ्र गति से उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अभी 18 तारीख से ही कुछ इम्प्लीमेंट हुए हैं और बहुत सारे नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स आए हैं, क्लैरिफिकेटरी नोट्स आए हैं, जिसके बहुत व्यापक पैमाने पर इसका असर व्यापारी वर्ग पर पड़ रहा था। और एक जरूरत महसूस हो रही थी कि हम इस पर एक चर्चा करें, और जो लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी, अलग अलग बातें आ रही थी, बाजार में अलग अलग चीजें सुनने को मिल रही थी, एक ही प्रावधान के बारे में 4-5 बात सुनने को मिल रही है। तो उन सब चीज को समावेशित करके आज हमने इसीलिए 3 एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया, ताकि तीनों की राय हमें सुनने को मिले और हम कुछ कंक्लूजन पर निकल पाए। कुछ इश्यूज पर, सारे इश्यूज पर शायद हम टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय की एक बाध्यता रहती है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, हमारा स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा कि पहले हमारे पैनलिस्ट कुछ अपने ओपनिंग रिमार्क्स देंगे टॉपिक पर, फिर बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे रखते हैं इसे, ताकि लोगों को समझ में आए चीजें, और सवाल अगर पिन पॉइंटेड रहेंगे तो लोग अपने आप को उसमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हमने इसीलिए इसे उस फॉर्मेट में रखा है। तो मैं सबसे पहले हमारी रागिनी जी गोयल मैडम, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कुछ ओपनिंग रिमार्क्स दें टॉपिक पर। लायंस क्लब के साथ शायद ये मेरा पहला कार्यक्रम है और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं लायंस क्लब के सभी पदाधिकारी को अपना सादर नमस्कार देती हूँ। ओपनिंग रिमार्क्स की जहां तक बात है, शायद बातचीत से ही कुछ हल निकल सकेंगे, क्योंकि जो बदलाव आए हैं वो काफी बड़े हैं, काफी विस्तृत हैं, और बदलाव जितने विस्तृत है उसका जो असर पड़ रहा है जनता पे वो शायद उससे काफी ज्यादा विस्तृत है। तो इसको धैर्य के साथ, शांति के साथ समझेंगे। शायद 3 हिस्सों में अगर हम लोग बात करें मोटे मोटे तौर पे, तो गुड्स में रेट के चेंजेस काफी आए हैं, और इसमें हालांकि सभी का ध्यान प्री पैकेज्ड और लेबल्ड गुड्स और अदर देन प्री पैकेज्ड और लेबल्ड पे है, बट उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनमें बदलाव आए हैं। 2-4 चीजों को डिस्कस करने की, जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है, कोशिश करेंगे। और सर्विसेज में काफी सारी रेट चेंजेस हैं, जिसमें कुछ बेसिक बातें भी हैं, वो भी शायद तीनों में से कोई एक पैनलिस्ट करे तो अच्छा रहेगा। और उसके अलावा काफी सारे और भी बदलाव है रेट चेंज के अलावा, जो कि प्रोसीजरल और कंप्लायंस रिलेटेड है, रिफंड रिलेटेड है। तो बदलाव तो बहुत सारे हैं, किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखते हुए लास्ट में शायद ओपन हाउस के दौरान क्वेश्चन आंसर में अगर कोई चीज डिस्कशन में छूटती है तो वो हम ले सकेंगे। मैं बात करना चाहूंगी मेनली गुड्स के ऊपर फोकस करके, वैसे तो सारा डिस्कशन साथ साथ चलेगा, लेकिन गुड्स में जो रेट्स के बदलाव आए हैं और उसके अंदर कुछ बारीकियां हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगी। मोटे मोटे तौर पर फूड ग्रेन्स, फूड आइटम्स में हम बात करें तो सिर्फ अनाज और राशन नहीं, उसके अलावा कुछ और कमोडिटीज भी हैं जिसपे हम बात करेंगे। गुड़, मुड़ी, चिवड़ा, खोई, इस तरह की काफी सारी आइटम्स हैं जो कि फूड प्रोडक्ट्स हैं। फिर कई नमकीन हैं, नमकीन, भुजिया, चबेना और अदर टाइप्स ऑफ रेडीमेड नमकीन भी हैं जो इसके अंदर हैं। शायद उस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है।
फ्लाई ऐश ब्रिक्स और ब्लॉक्स को लेके काफी सारा डिस्कशन चल रहा है, उसके ऊपर भी कुछ थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश करेंगे अगर समय ने इजाजत दी तो ये मोटे तौर पर गुड से रिलेटेड चीजें हैं। इसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन भी टैक्स रिसर्च यूनिट ने जारी किया है हाल ही में, उसके संदर्भ में भी कुछ बातों को डिस्कस करेंगे और फिर उसका क्या नतीजा निकलता है और कौन कौन से उसमें प्रावधान हैं जो कि हमें जीएसटी के अलावा गौर करने की जरूरत है, इस पे भी थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगी। म्यूट है शायद आपकी आवाज। थैंक यू सो मच रागिनी जी। मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहूंगा विकास अग्रवाल जी को। सर काइंडली अपनी ओपनिंग रिमार्क्स आप प्रस्तुत करिएगा। थैंक यू आयुष। जैसा कि मनोज ने ऑलरेडी कहा कि हम ये सेमिनार कर रहे हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन्स। बेसिकली जीएसटी में हम लोग देख रहे हैं लास्ट 5 सालों में एक चीज हर मीटिंग में हम श्योर हैं कि चेंजेस आए, रेट में चेंज आओ, प्रोसीजर में चेंज आओ, लॉ में चेंज आओ, बट चेंजेस जरूर आए। अब इस चेंजेस का अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो कई बार पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, कई बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने की कोशिश में अनफॉर्चुनेटली कम्प्लेक्सिटी बढ़ाते गई। हर बार ये बोलते हैं कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए करें, बट कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। 3 बेसिक जो ये 47 काउंसिल मीटिंग हुई थी या लास्ट पिछले 1-1.5 महीने में जो बदलाव आए हैं, 3 फैक्टर में हमने डिवाइड किया, जैसे रागिनी जी ने बताया था। गुड्स के ऊपर चेंजेस, सर्विसेज के ऊपर चेंजेस और प्रोसीजरल एंड लॉ में अदर चेंजेस। तो जैसे रागिनी जी ने बताया कि गुड्स पर वो कवर करेंगे, तो सर्विसेज पार्ट मोटे तौर पर मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। इस बार जो चेंजेस है उसमें बेसिकली सबसे बड़ी चेंजेस जो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में है, जिसमें जनवरी 22 में एक बार पहले ऑलरेडी चेंजेस आ चुके थे। इतनी जल्दी चेंजेस की जरूरत पड़ती है क्योंकि इनके चेंजेस अपने आप में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। जनवरी में चेंजेस है, अभी फिर जुलाई में चेंज कर दिया क्योंकि उनको मालूम है कि जनवरी के चेंजेस ने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की है। क्या कॉम्प्लिकेशन थी, अभी क्या चेंजेस हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो चेंजेस है जिसके ऊपर में लोगों का काफी नेगेटिव रिएक्शन है, जैसे हॉस्पिटल आईसीयू बेड्स के ऊपर में है, उसके ऊपर में ट्रांसपोर्टेशन में काफी चेंजेस कुछ किए हैं इन्होंने कि ट्रांसपोर्टेशन के सर्विसेज में जो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें उसके सेक्टर में भी काफी चेंजेस किए हैं। कुछ एक इनकी प्रेस रिलीज में कुछ और आता है, बाद में कुछ और आता है, वैसे भी चेंजेस है। जैसे रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के केस में है, उसमें भी थोड़ी कंफ्यूजन है कि वो हम लोग सब उस पर चर्चा करेंगे। और ये जो चेंजेस आए हैं वो डे टू डे सब छोटे मोटे सर व्यापारी को हिट करने वाले चेंजेस है, नॉट इवन व्यापारी, जो इवन डे टू डे कंज्यूमर को भी हिट करने वाले चेंजेस है। तो हम लोग आशा करता हूँ कि हम लोग का डिस्कशन फ्रूटफुल रहेगा। हमको भी नया है, डिस्कशन करेंगे तो कुछ हो सकता है हमसे आपके कुछ ऐसे सवाल आए जिस सवालों के बारे में हमने सोचा नहीं, और आपके सवाल से हमको भी उसका हल ढूंढने में हमको मदद मिलेगी और हमको भी जानकारी मिलेगी, अच्छा ऐसा भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिजनेस का हो सकता है या ट्रांजेक्शन का हो सकता है, जिससे कि कुछ खामियां पता चले या फिर कुछ क्लियरिटी आए। तो विद दिस ओपनिंग रिमार्क मैं हैंड ओवर करता हूँ आयुष को। Thank you so much, Vikas Bhaiya. Now I request Vikas Kumar ji Banka from Calcutta. Sir, अपना कुछ 2 शब्द कहे तो अच्छा लगेगा। Thank you, Ayush. At the very outset, first of all, I would like to thank Lions Club of Elite, its president Manoj sir and Daljit sir for giving me the opportunity to discuss today's seminar relating to changes in the 47th Council. जैसा कि रागिनी मैडम ने बताया कि भाई बहुत कुछ चेंजेज आए हैं, विकास जी ने भी कंफर्म किया कि हाँ बहुत सारे चेंजेज आए हैं। तो हम लोग जब इस चेंजेस की बात करते हैं विकास जी, तो ऐसा लगता है कि जैसे पहले जब जीएसटी नहीं था उसके पहले बजट का डिस्कशन साल में एक बार हुआ करता था। अब ये जीएसटी जब से आया है तो जब जब मीटिंग होती है तब तक एक बजट, मिनी बजट, वी कैन से दैट दिस इज अ मिनी बजट। अब ये मिनी बजट का डिस्कशन अपने को हर मंथली, हर क्वार्टरली या जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तब अपने लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिनी बजट कहीं न कहीं व्यापारी को तो इफेक्ट कर रहा है, कंज्यूमर्स को भी इफेक्ट कर रहा है। और आप लोगों ने सर कहा कि मतलब रागिनी जी ने तो टेक्निकली गुड्स को कवर कर रहे हैं, आप सर्विस को कवर कर रहे हैं, तो जीएसटी में तो सप्लाई में गुड्स और सर्विस छोड़ के तीसरा कुछ आइटम बचता नहीं है। तो मेरे को क्या कवर करना है ये आयुष भाई बताएं। तो मैं जो देख रहा हूँ सेक्शन 7 में देखा हूँ कि वो कहाँ से कवर करना है, तो बात करते करते मेरे को कवरेज मेरे को मिल गया। सेक्शन 7 में जब सप्लाई की डेफिनेशन देखते हैं अपन, तो वहां पे बोलता है सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ। तो मेरे को ये बोथ वाला आइटम ठीक लगा
कि गुड्स और सर्विस आप लोग ले लो, बोथ को मैं ले लूंगा। मतलब कहने का अगर अपने अगर सेकंड सेंस में अगर अपने लेते हैं तो थर्ड आइटम जो बच रहा है, जो लॉ के प्रोविजंस में जो चेंजेज आए हैं, दैट मींस रूल्स में जो चेंजेज आए हैं वो कहीं ना कहीं गुड्स को भी इम्पैक्ट करेंगे और सर्विस को भी इम्पैक्ट करेंगे। तो डेफिनेटली मेरे को लगता है ये थर्ड जो लाइन थी, ये आप लोगों ने मेरे लिए ये बोथ वाले आइटम छोड़ा है, ब्रॉडर एरिया मेरे लिए छोड़ दिया है। जो अपने ब्रॉडर एरिया की जब अपने बात करते हैं तो मेजर जो चेंजेस रूल्स में जो आए हैं, जो दोनों आइटम को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन के हैं। कॉमन क्रेडिट रिवर्सल का एक छोटा सा आइटम चेंज है, वो अपने डिस्कस कर लेंगे। रिक्रेडिट अपना जो PMT 01A में रिक्रेडिट की जो नई एक बात आई है वो अपने कवर कर लेंगे। PMT 03A, सॉरी 1A नहीं है, 3A में रिक्रेडिट है। उसके बाद इंटरेस्ट जो एक बड़ा इशू था कि ग्रॉस पे लेना है कि नेट पे लेना है, कि अपने ITC अगर अवेल कर रही है यूटिलाइज नहीं किए, ये बहुत एक डिस्प्यूटेड इशूज था। मैं इस पर विकास जी अप्रिशिएट करूंगा, इस काउंसिल मीटिंग में इन्होंने कम से कम ये स्पॉटिंगली और मतलब बहुत अच्छा स्टेप है कि दे फर्स्ट टाइम कम्स द मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन द रूल इटसेल्फ। अदरवाइज रूल्स में इंटरेस्ट की कोई चर्चा कभी थी नहीं। सेक्शन 50 ब्रैकेट 2 का फर्स्ट टाइम इन लोगों ने इंट्रोडक्शन किया है बाय रूल 88 कैपिटल बी। उसके अलावा एक मेजर चेंजेस जो अपने व्यापारी वर्ग को मतलब इम्पैक्ट करेगा, रिफंड का चैप्टर में है। दो एरिया बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया थी। एक एरिया थी इन्वर्टेड ड्यूटी के, जिसमें सर्विस का रिफंड अपने लोगों को मिलता नहीं था। VKC फुट स्टेप के जजमेंट के बाद में सुप्रीम कोर्ट के somehow they have come to up with the little bit changes in 89 sub rule 5, वहां से अपने लोगों को इम्पैक्ट मिलेगा, that we will discuss। और एक ये रिस्की एक्सपोर्टर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, और अगर वो मार्क हो रखा है वो सप्लायर एज ए रिस्की एक्सपोर्टर, तो उसके रिफंड बहुत मुश्किल से आते थे। फिर अपने लोग दिल्ली से करेक्शन कराना, कंप्लायंस कराना, दैट वाज ए कंपल्सन टास्क। वो सारे इशूज इसमें अपने लोग चेष्टा करूंगा डिस्कस करने की। एंड आई होप कि अगर टाइम परमिट करेगा तो डेफिनेटली वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कंप्लीट ऑल दीज इश्यूज। ओवर टू यू आयुष भाई। थैंक यू सो मच विकास जी। तो हम अपने सवाल जवाब के सिलसिलों को शुरू करते हुए विकास जी आपसे ही शुरू करता हूँ। आपने जब इंटरेस्ट की बात कही है तो इंटरेस्ट में किस तरह का मतलब बदलाव आया है और किस तरह का उससे प्रभाव पड़ेगा करदाताओं पर, हम आपसे वो समझना चाहेंगे सर, अगर उस पर आप कुछ प्रकाश डाल पाए। राइट आयुष भाई, सबसे पहले अपने पुराने प्रोविजन को समझते हैं। पुराने प्रोविजन इंटरेस्ट के सेक्शन 50 में ही थे, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 1, 2, 3। पहला बोलता था, पहले एक अपने लोगों को बहुत लंबा डिस्प्यूट चला था मेगा इंजीनियरिंग के केस के बाद में, कि इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो ग्रॉस पे होगा कि नेट पे होगा। तो आफ्टर लेटर ऑन दिस इशू वाज रिजॉल्व, ये क्लियरिटी हो गई थी कि आपका ग्रॉस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, नेट पे होगा। उसके बाद एक सेकेंड मार्केट में इशू मतलब आने लग गए थे डिपार्टमेंट की साइड से, कि आपने बाय मिस्टेक अगर कोई क्रेडिट को अवेल कर लिया है, मतलब आपकी क्रेडिट बनती थी 500 की और आपने बाय मिस्टेक 500 की जगह एक लड्डू बढ़ा दिया, मतलब 5000 की क्रेडिट आपने ले ली, और वो आपने यूटिलाइज किया या ना किया, डिपार्टमेंट का स्टैंड रहता था कि 4500 रुपये आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट ली है, इस 4500 रुपये आप 24% का इंटरेस्ट मेरे को दे दो। फॉर्चुनेट इनफ रूल 88B आने के बाद में इन्होंने एकदम क्लैरिटी से बता दिया कि इस तरह का अगर कोई केस हो जहां पे आपने क्रेडिट को यूटिलाइज अवेल किया है और यूटिलाइज नहीं किया, तो इस पे आपको कोई इंटरेस्ट देना नहीं है, पहला। दूसरा, अब ये क्वेश्चन आता है कि यूटिलाइजेशन कैसे पकड़ेंगे अपने, कब से यूटिलाइजेशन हुआ? आपने जनवरी 22 में क्रेडिट को ज्यादा अवेल किया, 500 की जगह 5000 ले लिया, राइट? तो अब ये अवेल तो कर लिया आपने 4500 रुपये एक्स्ट्रा, तो ये यूटिलाइजेशन कब से काउंट करेंगे, इंटरेस्ट का पीरियड क्या होगा? तो उसको भी उन्होंने क्लेरिफाई किया रूल में। उन्होंने साफ साफ वहां पर बताया है ये जो 4500 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा लिया है, ये 4500 रुपये का बैलेंस आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 4500 से जितनी नीचे आ जाएगा, जिस मंथ में नीचे आ जाएगा, जितना रुपया से नीचे आएगा उतना ही रुपया आपका मतलब यूटिलाइजेशन समझा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जनवरी में 4500 रुपया ले लिया, राइट, एक्स्ट्रा क्रेडिट, और आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अप टू जुलाई तक 4500 प्लस है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अगर 4500 की जगह पे 4000 रुपये आ गया, मतलब 500 रुपया आपने यूटिलाइज किया है, इस 500 रुपया पे सिर्फ 18% का ही ब्याज लगेगा। ये वेलकम स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड है फॉर क्लेरिफाइंग एंड फॉर मेकिंग इट द रूल्स। ओके, तो
अब अगर यूटिलाइज हो जाता है सर, तब किस तरह का ब्याज का प्रभाव पड़ेगा, ब्याज का असर पड़ेगा, ब्याज का क्या भार होगा? 18% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। 4,500 रुपए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि 4,500 रुपए आपने एक्सेस क्रेडिट ले ली है और आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर किसी भी मंथ में 4,000 रुपए चला गया, से एग्जांपल अप्रैल महीना में 4,000 रुपए चला गया, दैट मीन्स आपने 500 रुपए यूटिलाइज किया है। तो जिस डेट में आप रिवर्सल कर रहे हैं, आज की डेट में अगर रिवर्सल कर रहे हैं, तो उस समय से जो अप्रैल का जो ड्यू डेट था वहां से लेके आज तक का आपका 20 जो जितना भी पीरियड हुआ उसमें 18% 500 पे आप इंटरेस्ट दे दीजिए। जैसे पहले इसमें भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे, जैसे 24% और 18%, वो 24% वाले को तो क्लैरिफाई कर दिया गया था, और अब और भी थोड़ी क्लैरिटी आ गई, तो इंटरेस्ट के इश्यूज में बहुत क्लैरिटी आ गई है। राइट, राइट। इसमें और भी किसी तरह के लिटिगेशन का स्कोप है? मतलब मैं सारे पैनलिस्ट से पूछना चाहूंगा इसमें कि कोई भी कुछ बचा जहां पर हम और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी में कोई भी ऐसा टॉपिक लगता नहीं है मुझे जहां पे लिटिगेशन का स्कोप ना हो। लिटिगेशन का स्कोप तभी देखो 18 तारीख को सारे नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आए हैं, लेट द डिपार्टमेंट बी अपडेट। उनके बाद उनके माइंड में क्या चल रहा है लिटिगेशन करने का, वो अपने लोग को वेट करना पड़ेगा। यस यस यस, जैसे अभी रिसेंटली एक मेरे सामने में एक बात आई है, रागिनी जी यू विल थ्रो लाइट ऑन दिस ऑल्सो। उनका कहना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस जो कम होने की बात हो रही है, मान लीजिए आपने आईजीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा ले लिया बाय मिस्टेक, राइट, और सेटलमेंट रूल्स क्या बोलता है कि आईजीएसटी का पैसा सबसे पहले आपको एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। सी और एस में बैलेंस बचा हुआ है, डिपार्टमेंट कह रहा है कि आप आई को तो यूज कर ही लिए ना, यू आई का ब्याज दीजिए। तो ये एक स्कोप तो आयुष एनी टाइम मतलब रहेगा। मेरे अंडरस्टैंडिंग में लगना नहीं चाहिए कि आईजीएसटी जो आपने यूज किया है उसका रीपेमेंट आप सी और एस से कर सकते हैं, तो टेक्निकली आपको कोई बेनिफिट मिला नहीं है। थैंक यू। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे गुवाहाटी आईसीआई गुवाहाटी ब्रांच के चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा, सीए गौरव गाड़ोदिया जी। और मारवाड़ी सम्मेलन कामरूप शाखा के अध्यक्ष श्री विनोद जी लोहिया भी उपस्थित है, सर आपका स्वागत करूंगा मैं। हमारे समक्ष सीजीएसटी के प्रिंसिपल कमिश्नर साहब आशुतोष अवस्थी जी भी आने वाले थे, वो शायद अभी तक आए नहीं है। जैसे ही वो आएंगे तो हम उन्हें भी 2 शब्द कहने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। रागिनी मैडम, आप कह रही थी कि गुड्स के केस में बहुत व्यापक बदलाव आए हैं, रेट्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो आप अगर इस सभा को थोड़ा बता पाती किस तरह के चेंजेस आए हैं, उसमें किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे सबके ऊपर, और इसे कैसे डील किया जाए? बिल्कुल आयुष, इसमें जैसा कि हमने बात की कि सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थ और अनाज पर फर्क पड़ा है। तो अगर हम लोग खाद्य पदार्थों पर जाने के पहले, एक और आइटम आ रही है मेरे दिमाग में जिसपे काफी डिस्कशन हो रहा है, वो है फ्लाई ऐश ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स। इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर फिर ईटेबल फूड ग्रेन्स और इन पर चलते हैं। तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स और ब्लॉक्स में अगर हमें याद हो, पहले ब्रिक्स और ब्लॉक सेगमेंट की जो आइटम्स है इनमें 3 तरह की रेट चल रही थी, 5%, 12%, 18%। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ इसका डिस्कशन के लिए। कॉन्क्रीट ब्लॉक्स या सीमेंट ब्लॉक्स जो होते हैं प्रॉपर, उनके ऊपर तो रेट 18% है, इसमें कोई दुविधा भी नहीं है, पहले भी वही था, आज भी वही है। जो इशू चलता है उसके अंदर, क्योंकि इस रीजन की एक टिपिकलिटी है, हम लोग ईस्टर्न रीजन में हैं, और ये मुद्दा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईस्टर्न रीजन में जहाँ वेस्ट बंगाल है वहाँ फ्लाई ऐश बहुत भारी मात्रा में और बहुत कम दामों में उपलब्ध है, जिसकी वजह से फ्लाई ऐश ब्रिक्स या ब्लॉक्स के मैन्युफैक्चर और उसकी टैक्स रेट के डिस्कशन का इंपॉर्टेंस है। यही फ्लाई ऐश जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, खासकर आसाम और मेघालय में जहाँ हमारे व्यापारी और मैन्युफैक्चर वाले सब हैं, वहां पे इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। और अगर इसे हम बंगाल से या कहीं और से ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं तो इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो ये इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होता मैन्युफैक्चर में। हाँ, थोड़ी मात्रा में ये जो मिल पाता है उसको काफी मैन्युफैक्चरर्स अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करते हैं, और जितना फ्लाई ऐश मिल पाता है उसके अलावा जो मेन इंग्रेडिएंट है उसके तौर पर यहाँ पे मैक्सिमम यूज होता है सैंड और लाइम, जितना मैं समझती हूँ।
थोड़ा बहुत सीमेंट का उपयोग हर ब्रिक और ब्लॉक में होता है, वो एक छोटी मात्रा में होता है फॉर बाइंडिंग एंड स्ट्रेंथ, वो ठीक है। अब इसमें मुद्दा ये काफी समय से चल रहा था कि भाई 5% लगेगा फ्लाई ऐश ब्रिक्स ब्लॉक्स पर जिनमें 90% या उससे ज्यादा फ्लाई ऐश हो, ऐसा कह दिया गया था। उसके अंदर भी काफी सारी एम्बिग्विटी थी, जिसमें ये कहा गया कि सिर्फ एग्रीगेट या ब्रिक्स में 90% से ज्यादा होना चाहिए या ब्लॉक्स में भी 90% से ज्यादा होना चाहिए। उस एंट्री की लैंग्वेज को चैलेंज किया जा रहा था इन सारी चीजों के लिए। ये कंफ्यूजन लगभग 5 सालों से चला आ रहा है। इसको खत्म करने के लिए, जैसा विकास जी कह रहे थे कि सिंप्लीफाई करने के लिए शायद इस बार ये एंट्री लाई गई है। हालांकि बाकी सब में हमारे वित्त मंत्री जी ने ये कहा है कि ये, उन्होंने इस बार सिंप्लीफिकेशन की बात नहीं कही, उन्होंने कहा टैक्स लीकेज को कर्ब करने के लिए चेंजेस लाए गए हैं। गुड्स और सर्विसेज मैक्सिमम सभी आइटम्स में ये जो चेंजेस लाए गए हैं, ये टैक्स की लीकेज को रोकने के लिए, टैक्स इवेजन को कंफ्यूजन के नाम पे रोकने के लिए इसको लाया गया है। बहुत क्लियर मैसेज हमारे वित्त मंत्री ने हमको दिया है। लेकिन फ्लाई ऐश ब्रिक्स और ब्लॉक्स में जो 90% और मोर कंटेंट का जो लकूना था, उसको हटाने के लिए ये क्लैरिटी लाई गई है, जिसमें अब कोई रेशियो मेंशन नहीं है। सभी प्रकार के फ्लाई ऐश ब्रिक्स ब्लॉक्स या एग्रीगेट इसको 12% के ऊपर टैक्सेबल होगा, ऐसा एक फ्लैट इन्होंने ला दिया। 5% वाला जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट था उसको शायद हटा दिया गया है और सभी को 12 में रख दिया है। और सैंड लाइम ब्रिक्स नाम की एक एंट्री हुआ करती थी टैरिफ में, जिसके ऊपर 12% ही टैक्स था, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर्स पे करते थे। उसमें भी एक इशू उठता रहा है और शायद आगे उठता रहेगा या नहीं, ये हम समझेंगे तब जब हम ये डिस्कस करेंगे कि सैंड लाइम ब्रिक्स और ब्लॉक्स क्या अलग अलग चीजें हैं या उनके शेप और स्ट्रक्चर की वजह से उन्हें सेम भी माना जा सकता है। और अगर कोई चीज सैंड लाइम ब्रिक या ब्लॉक है या वो फ्लाई ऐश ब्रिक या ब्लॉक है, जब दोनों पर अब रेट सेम हो गई है, तो क्या इस डिस्प्यूट को अब आगे जिंदा रखने की कोई अहमियत बची है? मेरे ख्याल से अब इस डिस्प्यूट के मायने जो पहले थे 5 वर्सेस 12% के, वो खत्म हो गए हैं। तो बहुत ज्यादा टेक्निकल लिटरेचर पे और HSN नंबर पे जाकर अब कॉम्प्लिकेट करने की या डिस्प्यूट करने की गुंजाइश तो खत्म हो गई है। अगर उसके अंदर कोई चर्चा चलती है या इसके अंदर कोई डिस्कशन फर्दर के लिए आता है, तो वहां सिर्फ यही सवाल उठेगा कि ये फ्लाई ऐश ब्रिक या ब्लॉक है या ये सैंड लाइम ब्रिक्स है। तो इस डिस्कशन के लिए मैं थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के एक बैकग्राउंड की बातचीत विकास जी को भी, बंका जी को आमंत्रित करूंगी करने के लिए, क्योंकि वहां पे प्रॉपर फ्लाई ऐश ब्रिक्स या ब्लॉक्स बनते हैं। यहाँ एक सवाल ये उठा, सामने आया कि भाई अगर हम, कोई परसेंटेज मेंशन्ड ही नहीं है, तो क्या हम अगर सैंड लाइम ब्रिक्स के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, मान लीजिए BIS के ही हमें रेफर करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे स्पेसिफिकेशंस और कहीं तो हमें मिलेंगे नहीं, हमें तो BIS का ही स्पेसिफिकेशन देखते हुए आगे जाना है। तो अगर BIS ने मेरे प्रोडक्ट को सैंड लाइम ब्रिक कहा था, तो अगर मेरे प्रोडक्ट में फ्लाई ऐश मान लीजिए 7 या 8% है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में कॉमनली देखने को मिलता है, या कभी कभार ऐसा है कि हाँ मान लीजिए 20-22% भी देखने को मिला, तो उस केस में उसे फ्लाई ऐश ब्रिक कहा जाएगा या सैंड लाइम ब्रिक कहा जाएगा? मेरा इसमें व्यू ये है कि पहली बात ये कि अब 18 जुलाई से इसके ऊपर टैक्स रेट तो 12% फिक्स हो गई। इसका डिसीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 17 जुलाई तक मेरे प्रोडक्ट पे कौन सी टैक्स रेट लगनी थी, इसका फैसला भी इसी की रोशनी में होना है। तो ये एक आगे डिसीजन का मुद्दा रहेगा, डिस्प्यूट का मुद्दा रहेगा। तो क्या फ्लाई ऐश ब्रिक या ब्लॉक बोलने के लिए मुझे आधे से ज्यादा उसमें फ्लाई ऐश यानी कि मोर देन 50% होना जरूरी है, जो कि कई लोगों का व्यू है। और ये इसलिए है क्योंकि बंगाल में ये रेशियो 50% से मैक्सिमम तौर पर ज्यादा पाया जाता है, जितना मैं समझती हूँ। और अगर नॉर्थ ईस्ट में ये 50% से नीचे होता है, तो कुछ लोगों का ये एक व्यापारियों का ही एक ये मत था कि भाई प्रिंसिपल इनपुट नाम की एक चीज होती थी सेंट्रल एक्साइज एक्ट में, जो कहते थे कि भाई आपके जो गुड्स में प्रिंसिपल इनपुट्स है उसको आप रिपोर्ट करिए और वो इम्पोर्टेंट है, और जो प्रिंसिपल इनपुट है उससे मेरे प्रोडक्ट का नेचर डिफाइन भी होता है। तो क्या प्रिंसिपल इनपुट्स का कंपोजिशन 10% मानता था सेंट्रल एक्साइज, जो भी 10% से ज्यादा मेरे प्रोडक्ट में लगता है वो मेरा प्रिंसिपल इनपुट है। तो क्या इस 10% से ज्यादा के बेंचमार्क को अगर मैं फ्लाई ऐश के लिए मानूं, तो क्या मेरा प्रोडक्ट अगर 10% से ज्यादा फ्लाई ऐश कैरी करता था 17 जुलाई 2022 तक, तो क्या उसे मैं फ्लाई ऐश की कैटेगरी में मानते हुए उसके ऊपर 12% टैक्स दे सकती हूँ? और अगर ये एंट्री 18 जुलाई से अमेंड हुई है, तो पीछे
मेरे ऊपर कौन सा टैक्स रेट लगेगा। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। और विकास जी, मेरे ख्याल से फ्यूचर में हम इसे फ्लाई ऐश बोले या सैंडलाइम बोले, हमारी टैक्स रेट 12 है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन इस कॉम्पोजिशन को पीछे के डिसीजंस पे किस नजर से देखा जाए और कैसे देखा जाए, इसके ऊपर बंगाल का आपका कॉम्पोजिशन क्या कहता है, क्या पैटर्न है, थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है उनको बताइए ना। थैंक यू रागिनी जी। हमारे यहाँ बंगाल में, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, हमारे यहाँ फ्लाइज सिर्फ कैरिंग कॉस्ट पे अवेलेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ पावर प्लांट, बक्रेश्वर प्लांट प्लांट है, डीपीएल है, दुर्गापुर है, यहाँ पे बहुत अच्छी खासी मात्रा में फ्लाइज अवेलेबल है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे जितने भी फ्लाइज के ब्रिक्स बनते हैं, इसमें नॉर्मली 80 to 90% फ्लाइज का कंटेंट रहता है। बैलेंस का सैंड, सीमेंट, लाइम, बाकी ये सब एडहेसिव आइटम्स को यूज करके हमारे यहाँ फ्लाइज बनते हैं। तो यहाँ पे फ्लाइज या नॉन फ्लाइज का यहाँ पे टेक्निकलिटी में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी बात सुन के मेरे को ये लग रहा है कि असम साइड में अपने, चूंकि वहाँ पे फ्लाइज अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे लाइम्स, आई अंडरस्टैंड कि वहाँ मेघालय से शायद वहाँ से लाइम्स आते होंगे, क्योंकि जहां तक मेरा नॉलेज है कि मेघालय साइड से आपके वहां पे क्लिंकर्स का भी प्रोडक्शन है वहां पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पे आपके लाइम्स अगर सस्ते पड़ रहे हैं तो आप लोग लाइम्स में वहां पे मिक्सअप कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई लाइम्स का फ्लाइस ब्रिक्स बोले या फ्लाइस का ही फ्लाइस ब्रिक्स बोले, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ फ्लाइस एंड लाइम्स, राइट। तो इसमें देखिए दो इशू आते हैं। पहला, जो आपने 10% का प्रिंसिपल आइटम की जो बात करी है आपने, तो 10% तो हमारा दोनों आइटम में मिल रहा है। अगर मेरा 17% अगर मेरा फ्लाइएस है, तो बैलेंस का सारा मोर देन 10% का मेरा लाइम 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 पाउडर मिल रहा है। तो दोनों ही जब प्रिंसिपल इनपुट हो गया, तो मैं किसको समझूंगा, कौन सा प्रिंसिपल प्राइमरी प्रिंसिपल इनपुट है टू इम्पोज द जीएसटी, किस क्लासिफिकेशन में इसको लेके जाऊंगा। मैडम, इसके लिए अपने लोगों को जीएसटी के जो इंटरप्रिटेशन के रूल है, जो अपने को बोरो करने बोला गया है सेटा से, वहां पे जब कोई एक सिंगल एंट्री दो अगर एचएसएन में फॉल कर रही है, तो जो नियरेस्ट एंट्री होगी कमर्शियली, जिसको जिस वर्ड में अपने इंटेंगल कर सकते हैं, उस रियल में अपने को जाना पड़ेगा। और सो फार आई अंडरस्टैंड, अगर वहां पे मेजर पोर्शन कंपेयर टू फ्लाइएस एंड लाइम, अगर हमारा लाइम का है तो वो लाइम ब्रिक्स कहलाएगा, सो फार आई अंडरस्टैंड। इसमें शायद मैं ऐसा इसको क्लोज करना चाहूंगी कि भले ही हम आगे के लिए इसको ये माने कि टैक्स रेट हमारी 12 ही होगी, लेकिन हमें अपने क्लासिफिकेशन के लिए इसके अंदर एक क्लैरिटी रखनी चाहिए। और बीआईएस से इसको सर्टिफाई सैंड लाइम कराएं या इसको फ्लाई ऐश कराएं, हमें सर्टिफाई करा लेना चाहिए। दूसरी एक और बात, जो लोग इसके प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज हैं, वो लोग काउंसिल को एक फर्दर कम्युनिकेशन करें, अगर उचित समझें, कि सैंड लाइम ब्रिक्स नाम की जो एंट्री है उसको ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स करके उसे भी स्ट्रीमलाइन किया जाए, ताकि सिमिलर रेट पर अनड्यू लिटिगेशन को, बिना मतलब की कानूनी कार्रवाई को अवॉइड किया जा सके। सीधा सीधा इंटेंट काउंसिल का ये दिख रहा है कि दोनों ही तरह के ब्रिक्स और ब्लॉक्स को, अदर देन कॉन्क्रीट ब्लॉक्स ऑन ऑल आइटम्स, द काउंसिल इज हैप्पी टू लेवी 12%, और जो कॉन्क्रीट ब्लॉक्स है उस पर 18 लगे। इस एंट्री में फर्दर क्लैरिटी और लाई जा सकती है। चेंजेस तो आते रहते हैं, कुछ और वेलकम चेंजेस की हम उम्मीद इसमें कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा सुधार आए। इसके बाद आती हूँ खाद्य पदार्थ। इसमें मैं एडिशन करना चाहूंगा जी, मैं, विथ योर ड्यू परमिशन, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग ओवर हियर। प्लीज सर। फ्लाइएस ब्रिक्स में कंपोजिशन डीलर अब रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाएंगे। ये नोटिफिकेशन नंबर 15/2022 जो आया है, इसमें देखिए प्रिंसिपल नोटिफिकेशन जो 10 था, जिसमें कुछ गुड्स के आइटम को बार किए हुए थे, लाइक पान मसाला, जो काजू केसू नट्स वगैरह, इस तरह कुछ आइटम्स थे जिसमें कंपोजिशन स्कीम अलाउ नहीं थी। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी आया है। आप नोटिफिकेशन 15 देखिएगा मैम, यहाँ पे फ्लाइएस ब्रिक्स, फ्लाइएस एग्रीगेटर्स, फ्लाइएस ब्लॉक्स, ये अब कंपोजिशन डीलर नहीं रह पाएंगे। तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। ये 31 मार्च को ही आ गया था, उसकी एंट्री को भी अमेंड किया गया है अब आगे के लिए। नहीं, 13 जुलाई को एक फर्दर एक नोटिफिकेशन आया है। वो उस 31 नोटिफिकेशन में 90% वाला चीज हटाया गया। यस यस यस। तो ये जो एक 31 मार्च का जो आया था, वो 90% जो हटाया है, वो ध्यान देने का, कहीं को लोग कंटिन्यू तो नहीं कर रहे अभी भी इसमें अपने कंपोजिशन में। अगर कंपोजिशन कोई है तो वो पहले से अपना कॉल ले लें। और बात रही क्लैरिटी की जीएसटी में, तो अभी तक हम पापड़ और रोटी को भी डिफाइन नहीं कर पाए हैं जीएसटी, तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स तो शायद दूर की बात है।
मैडम प्लीज। फर्दर चलते हैं खाद्य पदार्थों पे, जो कि सबके इंटरेस्ट का टॉपिक है। इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन राइस पे चल रहा है, क्योंकि राइस हम सभी का मुख्य खाद्य पदार्थ है। तो राइस के बहुत सारे व्यापारी इस एरिया में हैं भी, असम बंगाल में बहुत लोगों की क्वेरी है कि ये क्या टाइप का प्रोविजन आया है। तो 18 जुलाई से पहले क्या था? 18 जुलाई से पहले जो राइस था वो भी टैक्सेबल था या नहीं था? अदर फूड प्रोडक्ट्स, अदर की बात अगर मैं करूं तो पहले मैं एक लिस्ट डिस्कस करती हूँ आपसे। गेहूं, चावल, उसके बाद अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो सभी प्रकार के पल्सेस, फूड ग्रेन, सीरियल्स, दाल, चना वगैरह सब इसमें आ गए। और कुछ आइटम्स और हैं, जैसे गुड़, गुड़ को टैक्स नेट में लाया गया है। और फिर दही, छाछ, पनीर, ये भी अगर प्री पैकेज्ड और लेबल्ड होंगे तो इनके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा। ये अभी प्रावधान आया। पहले क्या हुआ करता था, कुछ आइटम्स जैसे कि मैंने बताया गुड़ है, दही है, छाछ है, पनीर है, इनको पहली बार लाया गया। लेकिन उसके अलावा जो हम खाद्य पदार्थों की बात कर रहे हैं, पैकेटेड फूड, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते थे कि भाई अगर ब्रांड नेम से पैकेटिंग करके बेचा गया है कोई भी सामान, तो अगर उस पे ब्रांड लगा है, ब्रांड की अगर मैं बात करूं, रजिस्टर्ड ट्रेड नेम, रजिस्टर्ड ब्रांड नेम का शब्द था जो यूज होता था। अगर पैकेट में बेचा, प्री पैकेटेड, उसको पहले भी थी कंडीशन कि उसको पैकेट है वो भले ही सील्ड है या नहीं है, लेकिन अगर उस पर रजिस्टर्ड मार्का लगा है जो हम सब पहचानते थे, तो उसके ऊपर टैक्स था 5%। और अगर रजिस्टर्ड मार्का नहीं भी था तो जो ट्रेड नेम्स हैं जिन्होंने अपनी एक्शनेबल क्लेम, जो कंपटीशन के तहत अपना कानूनी हक अपने उस नाम पर छोड़ देते थे, उनके ऊपर टैक्स नहीं था। जिन्होंने नहीं छोड़ा था, अपनी क्लेम कायम रखी थी, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। अब जो चेंज आया 18 जुलाई से, उसने ये कहा कि भाई रजिस्टर्ड ब्रांड नेम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हटाओ। रजिस्टर्ड ब्रांड नेम है तो भी अगर वो लीगल मीट्रोलॉजी रूल्स के तहत प्री पैकेज्ड और लेबल्ड कमोडिटी मानी जाती है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और अगर नहीं तो उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो अब बात आ गई रजिस्टर्ड ब्रांड नेम से, ट्रेडमार्क से उठकर प्री पैकेज्ड और लेबल्ड के ऊपर। ये दो टर्म्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो प्री पैकेज्ड और लेबल्ड जो दोनों है, लीगल मीट्रोलॉजी एक्ट और रूल्स के तहत उसी के ऊपर जीएसटी लगा है, बाकी किसी पे नहीं लगा है। सार की बात ये आई। अब जब हम इसकी बात करें तो इसमें प्री पैकेज्ड और लेबल्ड क्या है, पहले हम ये समझें कि प्री पैकेज्ड और लेबल्ड किसे कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी हमें जो है वो हमें लीगल मीट्रोलॉजी से ही मिलेगा। प्री पैकेज मतलब पहले से पैक किया हुआ, बिल्कुल साधारण साधारण सीधी सीधी भाषा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लीगल मीट्रोलॉजी में 25 किलो तक के ही पैकेजेस को कवर किया गया है। 25 किलो से ऊपर का अगर कोई पैकेज है तो उसके ऊपर लीगल मीट्रोलॉजी रूल्स लागू नहीं होते, उस पर कोई डिक्लेरेशन लगाने की या कोई पाबंदी नहीं है, और ऐसे सभी पैकेजेस को जीएसटी में एग्जेम्प्ट माना गया है। इस भाषा को लेकर भी काफी सारे कंफ्यूजन थे बहुत दिनों तक, जिसके ऊपर अभी हाल ही में एक क्लैरिफिकेशन इशू किया। जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया था तब तक और भी बहुत सारे डिस्प्यूट दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस क्लैरिफिकेशन के आने के बाद स्थिति थोड़ी सी समझ में आई है। इसने एक क्वेश्चन आंसर की तरह, एफएक्यू की तरह कुछ सीधे सीधी बातों को समझाया है, जिसमें से एक सिंपल सी बात निकल के आई कि भाई अगर कोई मान लीजिए एक राइस मिल वाला है, उसने एक 20 किलो के चावल का पैकेज जो है वो बेचा, लेकिन उस पर जो लीगल मीट्रोलॉजी के तहत जो डिक्लेरेशन लगानी थी, वो डिक्लेरेशन क्या होती है कि उसके ऊपर प्राइस लिखा होना चाहिए, उसमें आपने पैकेट के वजन को छोड़कर उसके अंदर जो असल सामान है वो नेट वेट कितने का डाला है वो लिखा होना चाहिए, किसने उसको बनाया है उसका नाम पता होना चाहिए, और इस तरह की जानकारी उस पैकेज पे होनी चाहिए जो कि रूल्स में बताई गई है। तो ये सारी जानकारी अगर उसने उस पैकेट पर नहीं लगाई है, जबकि वो पैकेट 20 किलो का है यानी कि 25 किलो से कम का है, तो क्योंकि जीएसटी में कहा गया प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड, तो अगर उसने वो डिक्लेरेशन उस पर नहीं लगाई है तो क्या हम जीएसटी बिना दिए उस माल को बेच सकते हैं? तो सर्कुलर जो क्लैरिफिकेशन अभी आया, इंस्ट्रक्शन, उसने ये बोला कि भले ही आपने नहीं लगाई है बट आपको तो लगानी थी।
तो आप एक कानून की अवहेलना कर क्या आप दूसरे कानून में टैक्स से बच सकते हैं? जी नहीं, आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। अब अगर इसी बात को मैं आगे लेकर चलूं तो इससे मुझे और बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि मैंने मान लीजिए 25 किलो की एक बैग खरीदी और इस 25 किलो की बैग में से मैं अपने रिटेल शॉप में लोगों को सामान निकाल कर छोटे छोटे थैलियों में डाल कर बेचता हूँ। तो क्या उस समय जब मैं बेचता हूँ क्या मुझे उसके ऊपर जीएसटी देना है? अगर मैं लूज बेचता हूँ, मैं प्री पैकेज नहीं बेचता हूँ, तो मैंने अगर 25 किलो की या उससे छोटी बोरी से सामान निकाल के बेचा है तो मुझे उस पर जीएसटी नहीं देना। लेकिन जैसे ही ये बात आती है तो ये बात कृपया कोई भी ना भूले कि जब मुझे बेचते वक्त जीएसटी नहीं देनी तो मैंने जो बैग खरीदी थी उस पर अगर जीएसटी लगा था तो मुझे उसका इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि पहले इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था, अगर मैंने एग्जेम्प्टेड ही खरीदी थी, 25 किलो की बैग थी जिस पर पहले जीएसटी नहीं लगता था, मैंने खरीदी थी, तो अब मैं उसका माल खुला करके अगर खोल कर बेचूं थैलियों में तो मुझे उस पर जीएसटी अभी भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उसको पैक्ड तरीके से अब बेचूंगा तो मेरा उस पर जीएसटी लग जाएगा। तो अब इससे एक और समाधान ढूंढने की जरूरत आई सामने कि भाई पहले तो मैंने जीएसटी दिया हुआ ही नहीं है, तो अब मैं बेचूंगा तो जीएसटी लगेगा तो इसका कॉस्ट तो मेरा बढ़ जाएगा। तो इस तरह का मॉडल हमें इससे रास्ता निकालने की जरूरत ये है कि इसका एक तो समाधान ये है कि इस तरह का जो भी माल है वो हमें 18 तारीख के पहले ही हमारे मैन्युफैक्चरर को रिटर्न कर फ्रेश इनवॉइस टैक्स की 18 तारीख को ले लेनी चाहिए थी, जो कि हम शायद नहीं कर पाए होंगे। तो अब अगर हम उस माल को बेचें तो या तो हम लूज बेचें, और अगर हम लूज नहीं बेचेंगे तो हमारे ऊपर इसमें टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। जो हम फ्रेश कोई भी माल खरीदेंगे या हमने 17 तक खरीदा है जिसके ऊपर जीएसटी हमारा लगा हुआ है लेकिन हम इनपुट नहीं लेते थे, ऐसे लोग जो अब टैक्सेबल हो गए हैं, जो पहले टैक्सेबल नहीं थे, वो लोग पुराना आईटीसी अपना उस दिन का स्टॉक लेकर ले सकते हैं। इसमें कुछ प्रावधानों की बात हम लोग आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो 25 किलो तक के पैकेज्ड और लेबल्ड, प्री पैकेज्ड और लेबल्ड, प्री पैकेज का मतलब पहले से पैक्ड जो सामान है जिसको हम बेचेंगे तो उसके ऊपर 25 किलो से छोटे पे लगेगा, 25 किलो तक लगेगा, और 25 से ऊपर के जो बैग्स हैं वो एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ा चेंज है जो सारे ही फूड प्रोडक्ट्स पे सभी में आया है। अब बात कर रहे थे हम लोग नमकीन्स वगैरह की। मैडम इसमें मैं आपको एक इंटरजेक्ट करना चाहूंगा। इसमें मेरा जैसे सवाल है, जैसे एक कंफ्यूजन चल रहा है। आपने जैसे कहा कि 25 केजी वाला वो एफएक्यू फॉर्म में आया सबसे पहले। अगर हम देखेंगे तो एफएक्यू डिपार्टमेंट पर भी बाइंडिंग नहीं है, ना हमारे पर बाइंडिंग है। देखिए ये एफएक्यू अगर सेक्शन 168 के तहत जारी हुआ होता तो ये एक इंस्ट्रक्शन या सर्कुलर बाइंडिंग के तौर पे काम करता। लेकिन फिर भी क्योंकि एक टैक्स रिसर्च यूनिट ने इसको इशू किया है और पोजीशन को क्लैरिफाई करने के लिए किया है, तो हमारा ये भारी भरोसा है कि डिपार्टमेंट के जो अफसर और फील्ड फॉर्मेशंस हैं वो इससे बाउंड रहेंगे और इसको फॉलो करेंगे। जहां इससे वो डिसएग्री करेंगे और कोई भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन बनेगा और वो अगर कोर्ट के सामने जाएगा, तो एक बार जब कोर्ट के सामने इशू चला जाता है तो वैसे भी कोई सर्कुलर कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं होता, तो तब वहां इसके ऊपर इंडिपेंडेंट फैसला करने की गुंजाइश जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक सर्कुलर नहीं है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, एफएक्यू है। और साथ में एक और कंफ्यूजन इसी रूल में आ रहा है। आपने जो मेट्रोलॉजी रूल्स कही, ये शायद रूल 5-6 की बात है, शायद आपने जो कही। ये रूल 6 में 25 केजी की बात लिखी हुई है। रूल 26 है जिसमें वो एग्रीकल्चर फार्म प्रोड्यूस को 50 केजी की क्वांटिटी बताता है। एफएक्यू उसके बारे में नहीं कह रहा। एफएक्यू ने एग्रीकल्चर फार्म प्रोड्यूस के बारे में फिलहाल कोई बात नहीं करी है, कोई बात नहीं करी है, मगर उसने कह दिया कि अगर लीगल मेट्रोलॉजी के हिसाब से आपको डिक्लेरेशंस देना है तो वो इसका सेंस यही है इस सर्कुलर का। नहीं, इसमें देखिए मैं एफएक्यू नंबर 9 पर आपका ध्यान लाना चाहूंगी। एफएक्यू में जो
आखिरी प्रश्न है वो ये कहता है कि लीगल मीट्रोलॉजी एक्ट और रूल्स अगर उन्होंने कुछ क्राइटेरिया एक्सक्लूजन या नहीं काउंट करने के लिए बनाए हैं, तो वो जो एग्जेम्पशंस रूल्स 26 में दिए गए हैं उनको मानते हुए आपको यही मानना है कि इनको प्री पैकेज कमोडिटी नहीं माना जाएगा। तो जो भी एग्जेम्पशन आपको रूल 26 में दिया गया उस आइटम को भले ही वो 25 किलो से कम है उसको प्री पैकेज कमोडिटी नहीं मानना है। उसके मापदंड अलग भी हैं, तो वो रूल 26 में आने की वजह से प्री पैकेज कमोडिटी के संदर्भ से बाहर चला जाएगा। और कोई बात इसके अंदर अगर हम करेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर में लेते हैं। मेरे ख्याल से मुद्दे की बातें हमने कर ली हैं। यस यस यस। इसमें आपके गुड्स में और कुछ आपके इसमें एक नमकीन की बात मैं करना चाह रही थी कि नमकीन और फूड आइटम्स, इसके ऊपर भी एक प्रोविजन था जो ये कहता था कि रजिस्टर्ड ब्रांड नेम या फिर जिसने एक्शनेबल क्लेम अपना फोरगो किया है किसी भी ऐसी आइटम के लिए, उसके ऊपर टैक्स जो है वो 5% है, और जिन्होंने नहीं किया है फोरगो या जिनका रजिस्टर्ड ट्रेड नेम है उसके ऊपर 12% लगेगा। इसके ऊपर भी काफी समय से काफी सारा आर्ग्यूमेंट, काफी सारे इश्यूज चल रहे थे। तो वहां पे भी अब ये जो कंडीशन थी रजिस्टर्ड ट्रेड नेम और एक्शनेबल क्लेम वाली 5% वाली कैटेगरी में आने के लिए उसको भी हटाकर अब जो है प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड में ले आए हैं। तो डेफिनेटली नमकीन के तो सारे ही पैकेट 25 किलो से छोटे होते हैं, उसमें 25 किलो वाला इश्यू नहीं है, लेकिन अब रजिस्टर्ड ट्रेड नेम होने नहीं होने वाली कंडीशन को हटाकर इसको लीगल मीट्रोलॉजी रूल्स के अंडर में कवर कर लिया गया है। तो इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी और नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी की नजर से देखते हुए इसके अंदर सभी आइटम्स जो कि प्री पैकेज्ड और लेबल्ड है उन सभी पर 5% हो गया है। तो 12% का जो रजिस्टर्ड ट्रेड नेम वाला लैकुना था वो अब हट गया है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड दोनों ही पैकेटेड नमकीन वालों को खेलने के लिए मिल गया है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव चेंज जिसको मैं बताना चाह रही थी। मैडम भुजिया अगर 30 किलो में आएगा तब क्या होगा? आएगा तो देखिए फिर तो बात वही हो गई कि वो प्री पैकेज्ड और लेबल्ड वाली बात है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये आएगा। तो आपकी बात के साथ मैं आपकी हंसी में शामिल ही हो सकती हूँ, इससे ज्यादा तो फिलहाल कुछ नहीं। हम कुछ सवाल आ रहे हैं, लास्ट में एक साथ ले सर सवालों को ना। अभी हम इश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में हम सवालों को एक साथ सबके सवाल लेने की कोशिश करेंगे, लास्ट में एक साथ लेते हैं। विकास भैया अब आपके पास आते हैं और आपके पास थोड़ा मतलब थोड़ी भारी भरकम बातें की जाती हैं, तो आपके साथ वही बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं और बहुत सिग्निफिकेंट बदलाव हुए हैं, उस पर कुछ प्रकाश डालिए सर। आयुष, जैसे हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स का जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जब से आया है 1972 से, तब से ये लिटिगेशन वाला एरिया है, चाहे वेट में हो, सर्विस टैक्स में हो, जीएसटी में भी डे वन से इसमें लिटिगेशन चलती है। अब इन्होंने पहले नोटिफिकेशन भारी भरकम मार्च 19 में रियल एस्टेट के लिए अलग नोटिफिकेशन लाया, फिर भी ये कॉम्प्लिकेटेड रहा ही अल्टीमेटली। उन्होंने कॉम्प्लिकेशन को और एक कदम आगे बढ़ा दिया। 19 नवंबर 2021 में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, 1 जनवरी 22 से हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कुछ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में 18% लगाएंगे। 18% किस में लगाएंगे? तो उन्होंने बोला गवर्नमेंट एंटिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी के ऊपर जो काम करेंगे उसमें 18% लगाएंगे। तो सबसे बड़ा तो सवाल ये चालू हुआ कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एंटिटी क्या है और गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या है। नाम में अगर अथॉरिटी उसका मतलब वो अथॉरिटी नहीं हो सकता है, नाम में अथॉरिटी नहीं है फिर भी वो अथॉरिटी हो सकता है। उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टिव डिपार्टमेंट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखो कि वो अथॉरिटी है, कौन से एक्ट में उसको फॉर्म हुआ गया पार्लियामेंट में। तो इसको लेके बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे थे। इस डिस्प्यूट को मैंने भी अपनी तरफ से भी लिखा था, स्टेट कमीशन को भी लिखा था कि ये डिस्प्यूट हटा के 12% ही रहना चाहिए। बट सरप्राइजिंगली उन्होंने उस डिस्प्यूट को तो हटाया डेफिनेटली, बट 12 से उठा के सबको 18 में डाल दिया। पहले क्या था, गवर्नमेंट एंटिटी और गवर्नमेंट वाले 18 में थे, बाकी सब 12 में थे। रेलवे, रोड कॉन्ट्रैक्ट, अदर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी सारे बिल्डिंग्स थे वो सारे के सारे बिल्डिंग हो, रोड हो, टनल्स हो, कोई वाटर पाइपलाइन का काम हो, सब 12 में थे और ये 18 में
थे गवर्नमेंट एंटिटी वाले, वो कंफ्यूजन को दूर करना चाह रहे थे, बट कंफ्यूजन दूर करते हुए उन्होंने इसमें एम्बिग्यूटी तो डेफिनेटली उन्होंने हटा दी, बट ये टैक्स की रेट 12 से उठा के सीधे 18 कर दी। अब इन्होंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो कंपोजिशन स्कीम की जो शेड्यूल थी सर्विसेज की, उसमें बहुत लंबे सारे आइटम थे, ये आइटम होगा तो 12, ये होगा 18, ये इन्होंने सबको हटा दिया वहां से। दो बदलाव इन्होंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की, एक तो ये 12 से लेकर 18 कर दिया सबको, दूसरा इन्होंने एक लेबर कंपोनेंट का एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज था जिसमें प्रीडोमिनेटली लेबर कंपोनेंट था, 75% से ज्यादा लेबर कंपोनेंट था, और जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को देते हो उसमें 5% टैक्स था, उसको उन्होंने उठा के 5 से 12 कर दिया। तो अब हुआ अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हम देखेंगे कि अल्टीमेटली दो ही कैटेगरी बची है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में, एक 18%, एक है ये 12%। 12% है जब आप प्रीडोमिनेटली लेबर कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में हो, और बाकी सब केसेस में इन्होंने उठा के उसको 18 कर दिया। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में अब वैसे क्लियरिटी अब आ गई है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, इरेस्पेक्टिव ऑफ वर्क अदर देन 75% लेबर कंपोनेंट वाला वर्क, सारे के सारे 18% पे ही टैक्स लगे। आज की सिचुएशन ये। बदलाव तो बहुत वेलकम है, बट इसमें कुछ मतलब हमारे व्यापारी वर्ग को कुछ इश्यूज हो सकते हैं। जैसे हम कुछ सिनेरियोस डिस्कस करते हैं। मैंने काम खत्म कर दिया 10 जुलाई को। 10 जुलाई को मेरा काम खत्म हो गया, इंजीनियर ने आके नापी कर ली और बिल इंटरनल बिल बन गया। मैंने इनवॉइस रेज किया 17 तारीख को और पेमेंट आया 20 तारीख को। तो अब इस केस में जीएसटी हम 12% लगाएंगे इफ इट इज अ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या 18% लगाएंगे? देखिए, इसमें जो जीएसटी का जो रूल है, जनरल रूल ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई का, उसमें ये क्लियरिटी है, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, उसमें तीन माने सप्लाई वाले जो होते 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक होता है इनवॉइसिंग अगेंस्ट दैट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक होता है पेमेंट। अब कंसेप्ट ये है कि इस 3 में से कोई भी 2 एनी 2 जिस पीरियड में, जिस टैक्स रेट पीरियड में आएगा उसकी टैक्स रेट लगी। आपने जो एग्जांपल दिया उसमें 10 जुलाई को वर्क कंप्लीट हो गया, तब सप्लाई ऑफ सर्विस हैज बीन कंप्लीटेड ऑन 10 जुलाई, क्योंकि मेजरमेंट बुक से बिल हो गया। एक कंपोनेंट आपकी 18 जुलाई के पहले आ गई, दूसरा कंपोनेंट आपने बिल दे दिया 17 जुलाई को, दैट मींस 18 जुलाई के पहले, दूसरा कंपोनेंट भी आपने 18 जुलाई के पहले कर लिया। वैसे सिनेरियो में वो 12% नहीं आएगा, 18% में नहीं आएगा। अगर बिल नहीं भी करता, लेकिन अगर पेमेंट आ जाता और सप्लाई हो जाती, तब भी वो 12% में आता, जितना रुपये का पेमेंट आ गया, जितना उन्होंने सप्लाई कर दिया। तो इस केसेस में माने जो भी अब लोगों ने किया नहीं है, या फिर अभी अगर कर भी सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सिंस यहाँ डिपार्टमेंट के लोग नहीं है, तो मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि 18 जुलाई के पहले तक, हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर लोगों को काफी यही एडवाइस किया, उसके पहले तक आपने जितना भी काम एग्जीक्यूट कर दिया, अगर आप बिल दे सकते हो तो आप 17 जुलाई को उसका एक बिल बना के दे दो। अब होगा क्या, कल को डिपार्टमेंट की तरफ से जब बिल फाइनल बनेगा, बिल ज्यादा वैल्यू का बनेगा मेजरमेंट बुक के हिसाब से, बट आप अपने बिल का उसका डिफरेंशियल का बिल दे देना, या ज्यादा का बिल तो क्या क्रेडिट नोट दे देना, लेकिन आपको टैक्स अभी पे करना पड़ेगा। आप 17 जुलाई के पहले अगर बिल रेज करते हो, आपको पेमेंट अक्टूबर में आता है, जुलाई में आपको सेल्स बुक करके अभी पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 6% का जो कंपोनेंट है आज की डेट में बहुत बड़ा कंपोनेंट है। आज के डेट में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में पहले लोग 30-40%, 50% के बिजनेस करते थे, अब वो सिनेरियो रहा नहीं है। अब देश में 15-20%, 15% से 20%, 10 से 20% के बीच के मार्जिन में काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग, उसमें भी पेमेंट डिले होने से बैंक इंटरेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम है। ये 6% के एडिशनल बर्डन कॉन्ट्रैक्टर लोग के लिए लेने के लिए काफी डिफिकल्ट होगा। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ये जब बदलाव आया, ये जो रेट बढ़ी, उसका जो रीजन दिया हुआ है, रीजन बड़ा इलॉजिकल है। रीजन उन्होंने दिया है कि सिंस इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉन्ट्रैक्टर के पास जमा हो रहा है, बोल के हम इसको 18 कर रहे हैं, बट ये इनवैलिड रीजन है। इस रीजन के पीछे कोई भी लॉजिक है नहीं, बहुत सही बात है। आपने बहुत सुंदर से इसे समझाया कि काम जब खत्म हुआ, पहला, दूसरा हमने इनवॉइस कब रेज किया, और तीसरा हमें पेमेंट कब मिली। इन तीनों में से 2 कंपोनेंट अगर 18 तारीख से पहले आ जाते हैं तो 12%, अगर 18 से बाद में आते हैं तो 18%। एकदम सिंपल तरीके से हमने इसे डिफाइन कर दिया। दूसरा, कॉन्ट्रैक्टर्स को इसे बहुत सीरियसली लेना होगा, क्योंकि ये जो 6% का कंपोनेंट है, इन्हें कभी भी रीइंबर्स नहीं होने वाला है। दो ये रीइंबर्सेबल होना चाहिए। ये कोर्ट में शायद केस चल रहा है, शायद किसी ने पीडब्ल्यूडी में फाइल किया है, आई डोंट नो द केस, बट ये चल रहा है कि क्योंकि पहले जब जीएसटी आया था तब भी यही इशू थी
क्योंकि उस समय वैट का एक परसेंटेज हुआ करता था, उसी के हिसाब से टेंडर, क्योंकि टेंडरिंग पहले हो चुकी है, उन्होंने 12% के हिसाब से टेंडरिंग की, और अब जब 18% हो गया तो 6% का एक गैप आ गया। तो ये इसीलिए अगर इस चीज से बचा जा सके तो इसमें बेसिकली क्या है आयुष की, कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट साइन होता है उसके अंदर में जो टैक्सेशन का और एस्केलेशन का क्लोजेस होता है। कल ही मैं एक क्लाइंट के लिए एक केस का लेटर बना के दे रहे थे, तो उसमें हमने देखा उसमें कैटेगरिकली इस तरीके की वर्डिंग है, दिस रेट इज फर्म एंड फिक्स, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एनी टैक्स वर्ड यूज करके will not be adjusted. Even if there is an increase, nothing will be paid. Even if it decrease, nothing will be reduced. वैसे केसेस में इट माइट बी डिफिकल्ट। देखिए कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, सीपीडब्ल्यूडी है, रेलवे है, इन डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है कि टैक्स की इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होगा तो इट विल बी रिम्बर्स टू यू। बट स्टेट में तो है ही नहीं, गवर्नमेंट एंटिटी एनबीसीसी एनपीसीसी इन केसेस में है नहीं। बट डेफिनेटली इट इज एडवाइजेबल कि अगर रेट बढ़ा आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट में, सारे कॉन्ट्रैक्टर को अपने डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी तो जरूर देके रखनी चाहिए इमीडिएटली कि इस नोटिफिकेशन से टैक्स का रेट बढ़ गया है, वी आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली रिम्बर्स बिकॉज दिस टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड ऑन विच वी हैव नो कंट्रोल, and at the time of the estimate made by the department they have considered 12%, and at the time of participating in the tender we have also considered 12%। ये दे के रखे तो कल के फ्यूचर में लिटिगेशन हो तो एक रास्ता बन सकता है कि भाई जिस चीज में मेरा कंट्रोल ही नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी को आप बात कर रहे हो कि पहले ही मैं इम्पॉसिबल कोई एज्यूम कर लो कि 2 साल बाद ये 18 होने वाला है या 28 होने वाला है, उस ग्राउंड पर कल को फ्यूचर में अगर कोई बड़ा अगर कंपोनेंट होगा किसी का तो उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। 200 करोड़ 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 6% 20 करोड़ रुपया हो गया, वो जाएगा डेफिनेटली कोर्ट। उसके लिए एक लेटर इमीडिएटली देना चाहिए, दिस इज अ चेंज इन रेट एंड वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिम्बर्स, बिना क्लोज को मेंशन करे। वो रिप्लाई देगा कि इस क्लोज में ऐसा लिखा हुआ है, तो उसमें लिटिगेशन की फिर बात होती है। कोई डिपार्टमेंट हो सकता है इस केस में पेमेंट भी कर दे, कई के डिपार्टमेंट। तो ये जरूर सबको एडवाइजेबल है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने डिपार्टमेंट को, अगर रेट इंक्रीमेंट की बात है जिसमें क्लोज नहीं है, एक चिट्ठी जरूर दीजिए कि ये ऐसे ऐसे रेट चेंज हुआ है, टैक्स रेट बढ़ गया है, तो इसलिए काइंडली रिम्बर्स दिस एडिशनल 6% व्हेन वी पे। बहुत सही सर। विकास सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने इन्वर्टेड ड्यूटी रिफंड के बारे में कुछ कहा, कुछ उसके बारे में अगर आप 2 शब्द कह पाए तो। यस, देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन्वर्टेड ड्यूटी में क्या आ रही थी कि अपने जो सर्विस का जो कंपोनेंट था, पहले अपने पुराने प्रोविजन को समझते हैं, देन विल कम टू द न्यू चेंजेस। पहले क्या हो रहा था कि जब अपने इन्वर्टेड ड्यूटी किसको बोलते हैं आयुष, पहले उसको थोड़ा सा मैं उसको बताता हूँ। इन्वर्टेड ड्यूटी किसको बोलते हैं कि अपने कोई आइटम परचेज करते हैं 18% 12% में, और उस आइटम को मैन्युफैक्चर करके जब अपने सेल आउट करते हैं तो इट कन्वर्टेड इनटू 5%। इस तरह के बहुत सारे आइटम्स अपने ट्रेड में आती है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल अमाउंट 7% का या 13% का जो आइटम है, उसका अपने को रिफंड मिलता था बाई वर्च्यू ऑफ सेक्शन 54(3) क्लाउज 2 के हिसाब से इन्वर्टेड ड्यूटी में, राइट। मतलब सिंपल ये हो गया, आउटपुट 18% का है हमारा, आउटपुट उल्टा 12% का है और इनपुट हमारा 18% का है, तो जो 6% हमारा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट हो जाता था उसे इन्वर्टेड ड्यूटी हम कहते हैं। हाँ, और उसका अपने लोग को डिपार्टमेंट रिफंड देता था, ठीक है ना। उसमें अब ये जो इनपुट का जो कंपोनेंट था, वो इनपुट का गुड्स एंड सर्विस, ये 2 पोर्ट से इनपुट आता है अपने लोग का। तो रूल ये बनाया गया बाय वर्च्यू ऑफ रूल 89 सब रूल 5 कि सर्विस का पोर्शन व्हेन जब अपने इनपुट को कैलकुलेट करेंगे तो सर्विस को एक्सक्लूड कर देंगे, सर्विस का पोर्शन का रिफंड नहीं देंगे। सिंप्लीफाइड भाषा में अगर मैं बात करूं, एक बार मैं मानता हूं कि मेरा सारा टर्नओवर 5% का ही है, तो 100 रुपया का मेरा अगर आउटपुट मेरा सप्लाई हो रहा है, आउटवर्ड सप्लाई 100 रुपया का हो रहा है, और मेरा 100 रुपया का टोटल इनपुट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1000 रुपीज का मेरा आउटवर्ड सप्लाई है, 1000 रुपीज का, और इनपुट मेरा 100 रुपया का है, जिसमें 60 रुपया का गुड्स का है, 40 रुपया का सर्विस का है। और तो 5% अगर अपने देखते हैं उस पे 1000 रुपीज पे, तो 50 रुपीज मेरा आउटपुट टैक्स हो गया। तो पहले रिफंड अपने लोगों को मिलता था 10 रुपीज ओनली, 60 माइनस 50, सर्विस का पोर्शन को फुल्ली एक्सक्लूडेड कर दिया गया था। तो हमारा ये जो 40 रुपया का जो सर्विस का पोर्शन था, ये मेरा एक्यूमुलेट हो रहा था। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक एक्सकेलेट हुआ इन द मैटर ऑफ वीकेसी। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि भाई ये जो फार्मूला है, ये फार्मूले में एनोमली है, तो हम लोग इसको रेकमेंड करते हैं कि काउंसिल को इसको एनोमली को रिमूव करके ये जो 40 रुपीज जो ब्लॉक हो रहा है, इसका कोई एक मतलब मीडियम वे निकाल के अलाउ करो इसको रिफंड लेने का।
तो ये वेलकम चेंजेस है, अगेन आई एम सेइंग दिस इज ए वेलकम चेंजेस। नाउ 89.5 में अब एक फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर दिया गया है। ये जो लास्ट में जो अपने माइनस कर देते 50 रुपीज ऑन टैक्स, ये 50 रुपीज को अपने लोग को इन द रेशियो ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट के साथ में उस रेशियो में माइनस कर लेंगे। तो कमिंग बैक टू माय फार्मूला, अपने जो फार्मूला की जो बात कर रहे थे, 1000 रुपया आउटवर्ड सप्लाई, 5% का टैक्स, 100 रुपया का टोटल इनपुट, तो 100 रुपया में 60 रुपया और 40 रुपया का अपने लोगों ने ब्रेकअप निकाला। तो यहाँ पे 60 जो हमारा इनपुट का 60%, तो 50 रुपीज का 60% जो हमारा आउटपुट टैक्स है, तो 30 रुपीज हट जाएगा, 20 बचेगा, तो 60 माइनस 20 40 रुपीज का रिफंड आएगा, जो मेरा 10 रुपया का ही रिफंड आता था पहले। 30 रुपीज का एडिशनल रिफंड अपने पास में आएगा। इसमें आप एक ये मेजर इशू आएगा आयुष भाई, कि ये अप्लीकेबल कब से होगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन अपना रिसेंटली आया हुआ है। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट रागिनी जी एंड विकास जी फॉर देयर इंटरप्रिटेशन इन दिस रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे दो सिनेरियो बन रहा है। पहला सिनेरियो बन रहा है कि भाई मैंने 1.5 साल से रिफंड फाइल नहीं किया इन्वर्टेड का, अब अगस्त में आकर के मैं अगर रिफंड फाइल करता हूं, तो पुराना 1.5 साल का क्या मेरे को बेनिफिट मिलेगा नए फॉर्मूले से, या अप टू जून तक का कट ऑफ डेट हो जाएगा और यहाँ पे मैं पुराने फॉर्मूले पे जाऊंगा और जुलाई से मेरे को नया फॉर्मूला पे मिलेगा। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस पे एक सर्कुलर या कोई एक क्लैरिफिकेटरी नोट रखना चाहिए। डेफिनेटली सर, ये आपने एक और कहा था, जैसे ये रिस्की एक्सपोर्टर के केस में, हाँ, रिस्की एक्सपोर्टर के केस में आपने कहा था कि कुछ चेंजेस आए हैं, और जैसे पहले हो जाता था कि एक रिस्की एक्सपोर्टर किसी को अगर टैग कर दिया गया तो उसके अगेंस्ट में जो प्रोसीडिंग्स चलती थी वो तो अलग ही बात है, मगर उसका एक पूरा रिफंड का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता था। तो उसमें किस तरह के बदलाव आए हैं? यस yes, इसमें एक वेलकम चेंजेस है। अगेन इसमें क्लेरिफाई किया है गवर्नमेंट ने कि अगर कोई रिस्की एक्सपोर्टर मार्क हुआ है तो उसका कस्टम डिपार्टमेंट से रिफंड नहीं आएगा, उसका रिफंड अपने जुडिशनल ऑफिसर रिफंड जो ग्रांट कर रहे हैं उनके पास ही आएगा। इट विल कन्वर्टेड इनटू RFD 01 इंस्टेड ऑफ शिपिंग बिल। अपने जब एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं तो इसका शिपिंग बिल इटसेल्फ इज अ रिफंड एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग द रिफंड। If you are a marked as a risky exporter, then the shipping will converted into RFD 01। ये जुडिक्शन से वो लोग वेरीफाई करके जो इश्यूज थे जिसके चलते आप रिस्की एक्सपोर्टर मार्क हुए हैं, उसका एक रिजोल्यूशन करके फिर आपको रिफंड ग्रांट होगा। ओके, तो बेसिकली ये क्लैरिफिकेटरी नेचर में कई सारे जो बदलाव हो रहे हैं, ये लिटिगेशंस को कम ही किए जाने की तरफ एक कदम है, मगर अब इन्हें अगर डिपार्टमेंट सही सेंस पे ले तो शायद वो सही तरीके से इसे संभाला जा सकेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट में जब हम जाते हैं तो एक अलग पिक्चर बहुत बार दिखती है। सर, GSTR 3B में कुछ बदलाव आए हैं, आप उसके बारे में कुछ अगर कह सके। इस GSTR 3B में जो बदलाव आया है ना, ये एक मतलब वेलकम चेंजेस हैं या क्लैरिफिकेटरी है, दिस इज आल्सो वी हैव टू कंसीडर, क्योंकि ये सर्कुलर नंबर 170 में भी इन्होंने क्लैरिफाई किया है। मेजर जो चेंजेस GSTR 3B में है, अपने क्या करते थे कि जैसे मान लो कोई ब्लॉक क्रेडिट है, ठीक है ना, ब्लॉक क्रेडिट है या किसी का गुड्स हम लोगों ने सब्सिक्वेंट मंथ में रिसीव किया, उसका क्रेडिट हम लोग बाद में लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि 2B में जो क्रेडिट ऑटो पॉपुलेटेड होकर 3B में आ रहा था, उसको हम लोग मैनुअली रिड्यूस कर लेते थे और सब्सिक्वेंट मंथ में उसको क्रेडिट ले लेते थे। डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई किया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, 2B में पूरी क्रेडिट लो और उसको रिवर्सल के थ्रू उसको रिवर्स करो। ये एक मेजर चेंजेस है जो अपने लोगों को देखना चाहिए, ध्यान रखना होगा। रागिनी जी, कुछ जैसे अभी अगर जैसे खाद्य पदार्थ के केस में, जैसे जब कोई अगर टैक्सेबल हो जाता है प्री पैकेज्ड और प्री लेबल्ड वाले इशू में, उसने रजिस्ट्रेशन तो ले नहीं रखी है, क्योंकि पहले तो अगर इट वाज एन एग्जेम्प्ट आइटम, आप कंप्लीटली एग्जेम्प्ट आइटम में डील करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आपकी लायबिलिटी नहीं हुआ करती थी। मगर अब जब आप टैक्सेबल बन गए हो 18 तारीख से, तो अब किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जाए बिजनेस के द्वारा, और कैसे इनपुट यूटिलाइजेशन को कानूनी तरीके से मैक्सिमाइज किया जा सके, उसे कैसे
डील करें, क्योंकि कैपिटल गुड्स में भी आईटीसी की इशू आ सकती है। देखिए, अब इसमें दो तरह की सिचुएशंस हैं, दो हिस्सों में बात करते हैं इस पे। पहला, आपने जो कहा कि भाई सिर्फ एग्जेम्प्टेड आइटम्स में डील करते थे, तो एग्जेम्प्टेड ही खरीदते थे, एग्जेम्प्टेड ही बेचते थे, ना रजिस्टर होने की जरूरत थी, ना आईटीसी की और ना टैक्स पेमेंट की। अब आ गई, तो नया रजिस्ट्रेशन आएगा। जिस आइटम को हमने खरीद रखा है, जिसमें हमारा कोई आईटीसी इन्वॉल्व ही नहीं था, उसको मैंने ऑलरेडी बात की कि उसे अगर हम लौटाकर विथ टैक्स इनवॉइस लेते, 17 को लौटाकर 18 को वापस उसकी बिलिंग कराते, तो ये बेस्ट तरीका था। अब अगर वो काम नहीं हो पाया है, तो अब आगे उसको बेचेंगे तो उसके ऊपर तो जीएसटी लग जाएगा, और इसके लिए जीएसटी को पे करने के लिए जो बिजनेसेस में तकलीफ है वो सब जगह चिंता का विषय है। तो इसमें मेरा सुझाव ये है कि अगर कोई स्पेसिफिक आपके ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, प्राइसिंग में, रीपैकिंग में, लीगल मीट्रोलॉजी रूल्स का सहारा लेते हुए इसकी थोड़ी सी साइंटिफिकली और लीगल एडवाइस लेकर प्लानिंग करें। अदरवाइज ये जीएसटी का नुकसान डीलर को भोगना पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन वो आई जिसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई हम रजिस्टर्ड नहीं थे, हम जो चीज लेके आते थे, हमारा टर्नओवर एक लिमिट के नीचे था, या हम कंपोजिशन में थे, हम पे टैक्स नहीं था, लेकिन हमारे पास कुछ इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज ऐसी थी जिस पर कि हम आईटीसी ले सकते थे, हमने लिया नहीं। कुछ कैपिटल गुड्स ऐसे थे जिस पर हमें इनपुट लेना चाहिए था, हमने लिया नहीं। तो इसके लिए ट्रांजिशन स्कीम जीएसटी लॉ हर प्रोडक्ट के लिए देता है कि जो प्रोडक्ट पहले एग्जेम्प्टेड थे और वो बाद में टैक्सेबल हो गए, तो उसके अंदर अगर कोई मेरा, जिस दिन मेरे ये बदलाव आया, उस दिन मेरे पास जो भी स्टॉक में गुड्स हैं या कैपिटल गुड्स हैं या मेरी जो सर्विसेज हैं जो मैं कंज्यूम कर रहा हूं, तो उनका मुझे उस दिन स्टॉक लेना है, और ट्रांजिशन वाले दिन मुझे आईटीसी ले लेना है। अगर मैं कॉम्पोजिशन से रेगुलर भी हो रहा हूँ, इस वजह से मेरा आज कॉम्पोजिशन की लिमिट से बाहर निकल जाएगा अगर मैं टैक्स देने लगा मेरे और प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो मुझे कॉम्पोजिशन से रेगुलर हो जाना है। तो मैंने अगर आईटीसी के इनवॉइस वाला माल खरीद रखा था जिसका मैं पहले इनपुट नहीं ले पाता था, अब मैं उसका इनपुट लूंगा, तो मुझे मेरा 18 तारीख की सेल शुरू होने के पहले 17 तारीख की सेल बंद होने के बाद मुझे अपना पूरा स्टॉक लेना है। अब जब हम स्टॉक लेंगे तो उसके अंदर जितनी भी हमारी इनवॉइसेस हैं जिसके ऊपर हमने टैक्स पे किया हुआ है और जिसको हम आगे बेचने वाले हैं, अगर हम रजिस्टर्ड हैं तब तो हमें हाथों हाथ मिल जाएगा इनपुट। अगर हम रजिस्टर्ड नहीं थे और हमने नए से रजिस्टर्ड किया है, और हम 30 दिन के अंदर अगर रजिस्टर्ड कर लेते हैं, 30 दिन का समय हमें जीएसटी लॉ देता है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिस दिन से हम लायबल हो गए, तो अगर हमने 30 दिन में रजिस्टर्ड कर लिया, तो पीछे का जितना भी आईटीसी वाला स्टॉक हमारे पास रखा है उसके ऊपर हम आईटीसी ले सकते हैं उन इनवॉइसेस की बदौलत, और बाद में उस माल को जीएसटी लगा के बेच सकते हैं। कैपिटल गुड्स की अगर बात आती है, तो हमने अगर पहले कैपिटल गुड्स लिए थे जो कि हमारे एग्जेम्प्टेड गुड्स के सप्लाई के लिए यूज होते थे, इसलिए हमने इनपुट नहीं लिया था। इसमें फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसमें एक रूल ये होता है कि अगर हमारे कैपिटल गुड्स है उस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, तो हमें उसके ऊपर इनपुट नहीं मिल सकता, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो हम डेप्रिसिएशन की जो प्रक्रिया है उसको चालू रखेंगे, कैपिटल गुड्स के ऊपर हम क्रेडिट नहीं लेंगे। अगर हमने 1 साल के अंदर कैपिटल गुड्स को परचेज किया था, हमारी जो परचेज है वो 1 साल के अंदर की है, और फिर हम उसको, अब हमारे गुड्स टैक्सेबल हो गए जो कि पहले एग्जेम्प्टेड हुआ करते थे, तो हम उन कैपिटल गुड्स का 1 साल से अगर पुरानी परचेज नहीं है, 1 साल का टाइम लिमिट बताया गया है फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस इन जीएसटी, तो हम उसके ऊपर इनपुट अगर जिस दिन टैक्सेबल हो गया वहां से हम उसको भी ले सकते हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स के लिए एक बात हमेशा हम याद रखें कि जीएसटी लॉ कहता है हर कैपिटल गुड की लाइफ मानी जाती है 5 साल, यानी कि 60 महीने। तो 60 महीने में से जितने महीने हमने एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई में निकाल दिए, उतना हमारी टोटल आईटीसी का उतना प्रोपोर्शनेट हिस्सा, मान लीजिए 10 महीने पहले का खरीदा हुआ कैपिटल गुड्स है, तो हमें हमारे आईटीसी को 60 हिस्सों में बांटना है। 10 हिस्से का आईटीसी छोड़कर 50 हिस्सों का आईटीसी हम 18 जुलाई को लेकर, या जिस दिन हम रजिस्टर्ड हो रहे हैं 30 दिन के अंदर
उस दिन हम वो सारा ITC लेकर उसको आगे यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जिन लोगों ने नए प्लांट लगाए हैं या नए एसेट्स खरीदे हैं उसका ये बेनिफिट ले सकते हैं। इसका एडवांटेज अभी लेना इसलिए भी उचित लग रहा है, और ये डेप्रिसिएशन वाली बात से भी 1 ईयर मैच करता है, क्योंकि अभी तक किसी ने अपनी डेप्रिसिएशन की क्लेम जो है IT डिपार्टमेंट के आगे नहीं डाली होगी। मार्च 22 के बैलेंस शीट अभी फाइनल होना बाकी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आई है तो अपने CA के पास जावें और उन्हें ये कह दें कि जो डेप्रिसिएशन हमने बुक्स में लगाया था उसे हम रिवर्स करके हम ITC लेना चाहते हैं, और वो ITC हम इस करंट ईयर में ले पाएंगे, पिछले साल में नहीं। तो उस साल का प्रॉफिट आपका जो डेप्रिसिएशन की वजह से बढ़ेगा उस पे आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन आपको करंट ईयर में वो ITC मिल जाएगा जिसको आप हाथों हाथ अपना टैक्स पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो सिचुएशन हमने बात की थी कि हमारे पास ऐसे गुड्स पड़े हैं जिन पर पहले टैक्स हुआ नहीं करता था, अब लग गया, उसे जब हम बेचेंगे तो उसमें हम इस टाइप का अगर कोई हमारा ITC हमें एक्स्ट्रा मिलता है तो हम उसे यूज कर सकते हैं। इस टाइप का ITC जब हम लेंगे तो एक बात और याद रखिएगा, एंटी प्रॉफिटेरिंग के रूल्स लागू होते हैं जो हमें ये कहते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट हम ITC हम किसी चीज का लेने लगे जो कि हमें पहले नहीं मिलता था, जब उस गुड्स के प्राइस डिटरमाइन हुए थे, तो उससे कोई एडिशनल बेनिफिट अगर हमें हुआ है तो वो हमें कंज्यूमर को पास ऑन करना है। इस सिचुएशन में हमें ITC से जो बेनिफिट हुआ है उसके मुकाबले उसके टैक्सेबल सप्लाई की वजह से जो एक्स्ट्रा टैक्स का जो नुकसान हुआ है, दोनों को कंपेयर करते हुए हमें फाइनल रिजल्ट जो है निकालना है कि बेनिफिट कंज्यूमर को हुआ है कि हमें हुआ है। तो ये देखते हुए ये तीनों चारों चीजें एक साथ मिलानी है। काफी टेक्निकल बातें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं जो आपको एक साथ बता रही हूँ, शायद थोड़ी भारी लगे, लेकिन इनको नोट कर लें कि अगर कोई सर्विसेज के बिल हैं जो कि हाल ही में आपको आए हैं और वो सर्विसेज आपकी चालू है तो उसका आप इनपुट इस महीने में ले सकते हैं। जुलाई का महीना आपके लिए इनपुट लेने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी इनपुट के बेनिफिट का लॉस नहीं हो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं दोहराना चाहूंगी, जिस दिन आप लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आप लायबल नहीं थे तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आपने 30 दिन में नहीं अप्लाई किया तो आपके बहुत सारे बेनिफिट छूट सकते हैं। तो ये 3-4 बातें थी जो मैं बताना चाह रही थी। इसे पॉपुलर भाषा में हम लोग रूल 42 और 43 कहते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, जब हम 3B भरते हैं तो उसमें रूल 42 और 43 में हमने टोटल ITC कितना लिया और उसमें कितना रिवर्स किया वो नीचे बताना होता है। तो इसमें अगर हम पहले से हमने ले रखा है और कोई ITC हमें रिवर्स करना है, उल्टी सिचुएशन जो आयुष ने पूछी मुझे कि पहले मैं टैक्सेबल थी लेकिन अब मैं एग्जेम्प्टेड हो गई, तो उस केस में मुझे उसी तरीके से स्टॉक लेकर जो आइटम्स मेरी एग्जेम्प्ट हो गई उसका इनपुट मुझे रिवर्स भी करना है। मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। बहुत जटिल मुद्दे को बहुत सरलता से आपने कह दिया, लोगों को जरूर समझ में आएगा ये। विकास सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, रेसिडेंशियल रेंट के केस में कुछ बड़े बदलाव आए हैं और उसे समझना शायद लोगों को बहुत जरूरी है। आप थोड़ा सा अगर उस पर प्रकाश डाल सकें। देखिए, मैंने अपनी रिमार्क्स में कहा था कि प्रेस रिलीज कुछ और कहता है और नोटिफिकेशन कुछ और कहती है। मैं इसी के संदर्भ में मैंने कहा था, जब प्रेस रिलीज आई थी ये 47 काउंसिल मीटिंग की, तो उसमें उसने वर्ड यूज किया था रेसिडेंशियल ड्वेलिंग प्रोवाइडेड टू ए बिजनेस यूनिट, या जो बिजनेस, अगर कोई बिजनेस है, सपोज हमारा बिजनेस है, कोई मैं किसी की मेरी दुकान है, उसमें मैं अपने गेस्ट हाउस बना रहा हूँ, उसके लिए मैं रेसिडेंशियल यूनिट लिया हूँ। पहले वो एग्जेम्प्टेड था, कि पहले पर्पस था कि रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज होने से वो एग्जेम्प्टेड था। प्रेस लीजिए है कि भी अगर कोई बिजनेस हाउस अगर लेता है रेसिडेंशियल यूनिट तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, RCM में हो जाएगा। रिवर्स चार्ज मतलब रिसिपेंट को टैक्स देना, क्योंकि रेसिडेंशियल वाले तो रजिस्टर्ड नहीं होंगे मैक्सिमम। अब इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाली इसमें इन्होंने फिर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर, इन्होंने बोला कि ये जो रेसिडेंशियल यूनिट है अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे तो वो RCM में आ जाएगी। अब मैं बीइंग चार्टर्ड में मैं भी रजिस्टर्ड हूँ, अगर मैं कोई घर भाड़े में लेता हूँ मेरे पर्सनल पर्पस के लिए, ऑल्दो मैं अपने बिजनेस में उसका एक्सपेंडिचर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन क्या मेरे पर ये GST एप्लीकेबल होगा? प्लेन रीडिंग के हिसाब से तो लग रहा है एप्लीकेबल होगा, बट लेकिन सिंस मेरे बुक्स में ये आएगी नहीं, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये एक्सपेंडिचर बुक ही नहीं होगा, तो इसमें नहीं लगना चाहिए, और इंटेंट वो होना था भी नहीं। बिजनेस हाउसेज, कॉर्पोरेट हाउसेज रेसिडेंस लेते हैं, गेस्ट हाउस लेते हैं, डायरेक्टर्स को देते हैं, परक्यूजर दिखाते हैं, उस केस में लगाने का था इंटेंट। लेकिन ये नोटिफिकेशन में
एक ये भेग इन्होंने गलत तरीके से नोटिफिकेशन बाद में निकाल दी, तो हो सकता है इसी क्लेरिफिकेशन। आपकी पोजीशन यही है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर देता है तो उसके ऊपर में रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के केसेस में भी जीएसटी लगेगा 18%, और वो रिसिपिएंट को देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज के केस। या इसकी फ्यूचर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी इसकी क्लेरिफिकेशन है कि अगर वो बिजनेस एक्सपेंडिचर के हिसाब से बुक होता है तभी लगना चाहिए। अब हम कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लें। अगर कुछ सवाल हमारे चैट बॉक्स में आए हुए हैं, हम उन्हें ले लेते हैं। विशाल जैन जी ने पूछा है, if the client is selling goods after packing in normal transparent bags of 1 kg each, how do I know if I am compulsorily required to provide the prescribed declarations as per legal metrology rules? मैं लेती हूँ इस क्वेश्चन को क्योंकि मेरे टॉपिक से रिलेटेड है। विशाल जी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बल्कि आपने जो पूछा इसमें एक थोड़ी सी बात और ऐड करके फिर इसका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। ये काफी सारे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स की भी क्वेरी है। वो लोग क्या करते हैं, अपने वेयर हाउस में बड़े पैकेजेस खरीद के लाते हैं और उससे छोटी छोटी ट्रांसपेरेंट बैग्स में ईज ऑफ सेलिंग के लिए, शेल्फ पे लगाने के लिए 500 ग्राम और 1 केजी के पैकेट्स बना के, 250 ग्राम के पैकेट्स बना के लगाते हैं ट्रांसपेरेंट बैग्स में, जैसा आप कह रहे हैं। और उसके ऊपर स्टिकर लगाए जाते हैं जिसके ऊपर नेट वेट, एमआरपी, शॉप का या स्टोर का नाम और ये सारी चीजें डिक्लेयर्ड रहती हैं। अब ये जो लेबल है और ये जो पैकेट है, इसे क्या हम प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये अपना सवाल है। इससे पहले एक चीज और प्लीज समझिएगा, दो कॉन्सेप्ट्स हैं लीगल मीट्रोलॉजी में, एक मैन्युफैक्चरर और एक पैकर। ये दो लोग हैं जो कि पैकिंग और रीपैकिंग करने का हक रखते हैं। और प्री पैकेज की जब हम बात करते हैं तो पहले से पैक किया हुआ हम कहते हैं। तो हमने उसको अपने गोडाउन में पैक करके शेल्फ पे रख दिया, लेकिन हम लीगल मीट्रोलॉजी से बाउंड हैं कि नहीं, ये डिसाइड करने के लिए हमें पहले ये समझना है उस प्रोडक्ट के लिए हम खुद मैन्युफैक्चरर या पैकर हैं या नहीं। तो अगर हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, हमारे खुद के प्रोडक्ट्स हैं जो बड़े बैग्स में पैक होके आते हैं, उनको हम अगर रीपैक करते हैं तो हमें डेफिनेटली एज अ पैकर लीगल मीट्रोलॉजी की सारे रूल्स पैक करने चाहिए और उन स्टिकर्स और लेबल्स को लेबल्ड मानते हुए उसको लगा के उसके ऊपर जीएसटी तो वैसे भी बनता है छोटे पैकेट्स में। जीएसटी से तो हम बच नहीं पाएंगे, अगर हमने रूल्स को प्री पैकेज्ड और लेबल्ड वाले को टच किया है तो जीएसटी तो लग जाएगा। आपका सवाल ये था कि क्या मुझे लीगल मीट्रोलॉजी की कंप्लायंस करनी है। तो अगर मैं किसी भी प्रकार की पैकिंग रीपैकिंग सेल से पहले करता हूं तो मुझे पैकर के तौर पर लीगल मीट्रोलॉजी को कंप्लाई करना अब बाध्य लगने लगा है। बाध्य तो पहले भी था, बल्कि ये भी एक टैक्स लीकेज को कर्ब करने का एक स्मार्ट तरीका है, जहां जीएसटी के साथ लीगल मीट्रोलॉजी को एनफोर्स करने का एक मैकेनिज्म गवर्नमेंट लेके आई है। हम सभी ने देखा है कि भारत में पीएफ और ईएसआई का एडमिनिस्ट्रेशन काफी कमजोर रहा था बहुत सालों तक, और सरकार धीरे धीरे उन कानूनों को जो कि बैडली एडमिनिस्टर्ड या पुअरली एडमिनिस्टर्ड थे, उनके दूसरे प्रावधानों के सहारे से मजबूत बना रही है सरकार। तो ये इसी दिशा में एक और कदम है। लीगल मीट्रोलॉजी अगर मैं प्री पैकिंग करता हूं और मैं खुद मैन्युफैक्चरर या पैकर हूं तो मुझे उसको करना ही है। अब बात हुई कि प्री पैकेजिंग मैंने शेल्फ पे लगाते वक्त किया है और सिर्फ एक लिमिटेड पर्पस से किया है, तो इस केस में क्या मुझे ये जरूरत है, तो मैं एक लूज कैरी बैग में सील कर आपको बिना सील किए बेचता हूँ, या मैं एक पैकेट में सील करके वहां रख के बेचता हूँ, और मैं अगर 100% लीगल मीट्रोलॉजी के लेबल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता हूँ तो मेरे ऊपर कोई बहुत ज्यादा लंबी कार्रवाई या कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जिसको मुझे फुलफिल करना है। या छोटे से तरीके से अगर मैं समझाऊं कि मेरे पैकेट को बिना वजन किए अगर मेरा कस्टमर भरोसे के साथ खरीद सकता है, मैंने ऐसी पैकेजिंग करी है, तो मेरा लीगल मीट्रोलॉजी मान्य है। और अगर नहीं है तो मुझे मेरे कस्टमर को, अगर वो मुझे कहता है वजन करके दो, तो मैं वजन करके दूंगा, और अगर जितना कम निकलेगा उसका मैं कम पैसा ले लूंगा, तो मेरा प्रोडक्ट प्री पैकेज नहीं है, ओपन है। फिर उसके ऊपर प्री पैकेजिंग के कंडीशंस मैंने नहीं लगाए हैं, अपने प्रोडक्ट को उतना ऊंचा नहीं उठाया है, तो लीगल मीट्रोलॉजी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और जीएसटी तो मेरे ऊपर लगी गया है। तो इसके अंदर इससे ज्यादा कोई बारीकियां मुझे नजर फिलहाल नहीं आती, जीएसटी हमें पे करना है। संक्षेप में हम यही समझते हैं कि हमने परचेज कैसे किया वो मायने नहीं रखता,
राइट। हम उसे सेल कैसे कर रहे हैं, उसे हम बेच किस कैसे तरह सेल से रहे हैं? करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ परचेज की बात नहीं है। परचेज के बाद ये रीपैक कर रहे हैं, इसलिए बीच में एक पेच आया इसमें। यस, मगर इसमें कुछ पेचीदगियां आ सकती है आने वाले समय में, हम ज्यादा लोगों को कंफ्यूज ना लीगल करें। मीट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के विजिट शायद बढ़ने लगेंगे शॉप्स में जहां पैकेजिंग का इशू है। ये एक फोर्सिएबल इवेंट है। Yes. If rice is packed in 26 kg pack, is it taxable or exempted? भाई ये सवाल शायद हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर सवाल है इस समय। इस सवाल के लिए जितनी तालियां बजाई जाए कम है। और साथ में ये भी कहूंगी कि एफएक्यू ने इसको छोड़ के दूसरे सवालों के जवाब दे दिए हैं, इसका जवाब नहीं दिया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसमें भी मेरा जवाब, शायद मैंने जो पिछला जवाब दिया उसमें आधे से ज्यादा मैंने बातें कवर कर ली, इसका मुद्दा क्या है। 2-3 बातें और इसमें जोड़ूंगी। राइस अगर हम बात करते हैं तो जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि लीगल मीट्रोलॉजी में कवर्ड हैं, इसके लिए एक शेड्यूल 2 नाम का शेड्यूल दिया गया है लीगल मीट्रोलॉजी रूल्स के पीछे। उसमें ये बताया गया कि जो जो प्रोडक्ट्स हैं उसके पैकेजेस, स्टैंडर्ड पैकिंग कितने साइज की हो सकती है। के केस में आपका 1/2 kg, 1 kg, 2 kg, 5 kg एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ, मतलब 5 kg के मल्टीपल्स में आपको पैक करना है। तो 5 kg के बाद 5 kg के मल्टीपल्स में पैक होगा तो स्टैंडर्ड पैक होगा। तो सबसे पहली बात जो सामने आई वो ये आई कि 26 किलो का जो पैक है वो नॉन स्टैंडर्ड पैक है। दूसरी बात जो सामने आई, ये 25 किलो से ऊपर का है, मतलब ये प्री पैकेज्ड का जो लीगल मीट्रोलॉजी एक्ट का जो एनफोर्स है, एप्लीकेबिलिटी है, जो एक्ट के अंदर ही बताया गया, ये उससे रूल्स या एक्ट की वो है 25 किलो तक। उससे ऊपर के होलसेल पैकेजेस के लिए उसके जो डिक्लेरेशन और रूल्स हैं वो मान्य नहीं है। दूसरी बात, ये शेड्यूल 2 में स्टैंडर्ड पैक साइज नहीं है। तो नॉन स्टैंडर्ड पैक साइज को क्या मैं प्री पैकेज्ड बोल के बेच सकता हूं? ये एक सवाल रह गया जिसका जवाब मुझे नहीं पता, लीगल मीट्रोलॉजी वाले ही बताएंगे। हम सिर्फ जीएसटी की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि 26 किलो के ऊपर जीएसटी तो नहीं लग सकता। जीएसटी तो नहीं लग पाएगा। अगर 20 किलो के पैक पे मैंने डिक्लेरेशन नहीं लिखा या 1 किलो पे नहीं लिखा तो भी जीएसटी लगेगा। तो 26 किलो पे मैंने लिखा या नहीं लिखा उसके ऊपर नहीं लगेगा, ये तो तय है। इस पे डिस्प्यूट्स कितनी भी हो जाए, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से हो जाए, वो एफएक्यू में ये आंसर नहीं आया है, इसलिए इसको हो सकता है ऑडिट में क्वेश्चन करे। बट 26 किलो का पैकेट बेचने के लिए मुझे जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। अब अगर मैं प्री पैकेज्ड की बात करूं तो 25 किलो के बोरे में क्या मैं 26 किलो डाल सकता हूं, या मैं उसके लिए नया बोरा लाके उसको रीपैक करूंगा। मैं रीपैक करूंगा तो क्या मुझे ये अथॉरिटी एज अ मैन्युफैक्चरर या पैकर है या नहीं। और अगर मैं नॉन स्टैंडर्ड पैकेज बेचूंगा तो लीगल मीट्रोलॉजी मेरे ऊपर कौन कौन से ऑफेंस में पेनल्टी लगा सकते हैं, ये पूछने वाली बात है। जीएसटी इस पर नहीं लगेगा। मतलब संक्षेप में हम यही कहेंगे कि हमें इतने कानूनों के साथ अब एक और कानून को ऐड ये कर बहुत ही लेना इंटरेस्टिंग चाहिए। सिचुएशन है। तो आपका क्या व्यू है इस पे ये भी जानना चाहूंगी, बल्कि विकास जी अग्रवाल से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पे अपनी व्यूज दें, बिकॉज दिस इज द हॉट सीट ऑफ इंडिया नाउ कि राइस के 26 किलो के बैग के ऊपर अगर उसको 25 केजी को कन्वर्ट किया जाए, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से तो रागिनी जी आपने जो कहा 100% करेक्ट है। इसमें जीएसटी लग नहीं सकता, वो लगा सकते नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोगों ने जो नोटिफिकेशन दिए उसमें जो डेफिनेशन लास्ट में दिया, क्लेरिफिकेशन व्हाट डू यू मीन बाय प्री पैक्ड एंड लेबल्ड, वहां में उन्होंने कि वेयर इट इज रिक्वायर्ड अंडर लीगल मेट्रोलॉजी, वहां पर उन्होंने वहां से लिंक किया है, दूसरे एक्ट से उन्होंने बोरो किया है। तो जब वो 25 किलो से ऊपर का है तो लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई भी हाल में जीएसटी तो नहीं लग सकता। अब ये 25 किलो के ऊपर में उसमें लीगल मेट्रोलॉजी एक भी मेरे हिसाब से कोई भी एंगल से एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि होलसेल पैकेज के रूप में आएगा, तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। और अब होने वाला यही है, सारे सामान अब 26 किलो के आएगी या 30 किलो के आएगी, क्योंकि सरकार जितनी एक कदम वो डाल में पास वाली कहानी है। जब इन्होंने रजिस्टर्ड ब्रांड लाया तो उन लोगों ने फोरगो कर दिया। अब ये 25 किलो की कहानी लाएंगे तो 30 किलो का, ऑलरेडी 30 किलो के बैग्स की ऑर्डर्स हो चुकी, पीपल हैव ऑलरेडी गिवन ऑर्डर्स फॉर 30 किलो बैग फॉर राइस दाल सब के लिए। वो बोले यार 25 किलो में आता, 30 में आ जाएगा, 100 के लिए असुविधा है। अब 100 किलो का बैग में प्रॉब्लम क्या है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको कैरी करने वाले लेबर्स की। आगे 100 किलो में आते हैं, दुकानों में रखने की इतनी स्टोरेज नहीं है कि 100 किलो का बैग लगाया उसमें से चावल निकाल के दिया।
तो 25 की जगह 30 करने में क्यों असुविधा? 30 अभी हो सकता है 30 जाए, कल सरकार लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को चेंज कर देगा, बोलेगा 50 किलो तक लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल है, तो 55 में जाएंगे। तो ये सिलसिला तो चलते रहेगा, बट आज के डेट में 26 किलो पर मेरे हिसाब से नहीं लगेगा। बंका साहब, आपका सर क्या कहना है? 26 किलो तो बात इसलिए आ रही है क्योंकि बैग्स अवेलेबल नहीं है 30 केजी के। अगर 30 केजी के अगर बैग्स अवेलेबल होते तो ये 26 की बात नहीं आती, सीधे 30 में पैक होता। सही है, अब नहीं ये- 30 किलो देख के ऑर्डर लगने लग गए अब। हाँ, ऑर्डर्स में सर जितने भी मैन्युफैक्चरर है ना प्लास्टिक के बैग्स के, वो बेचारे परेशान हो रखे हैं। वो बोलते हैं 30 रातों किलो रात कहाँ से प्रिंट करें। इनको डाई भी नया लाना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये बिल्कुल। 30 किलो तो हो ही जाएगा, 2 दिन बाद हो जाएगा, 5 हम्म। दिन बाद हो जाएगा। अहम मुद्दा जो है कि जो 25 इसमें किलो 2 इशू है बैग मैम। स्टॉक में पड़े हैं, यस, 2 इशू उनको हैं। एक 30 तो 30 किलो केजी में ओवरनाइट रीपैक नहीं करके मिलेगा। तो बेचना संभव नहीं होगा इमीडिएट। यही वो जैसे माल क्या 26 केजी करके उसी बैग में रीलेबल करके बेचा जा सकता है, ये मुद्दा है। यस, इसमें देखिए 2 मेरे इशू आ ख्याल रहा से है। इसमें कोई लीगल बार एपरेंटली तो नहीं आ रहा है, इसमें कोई लीगल मीट्रोलॉजी की परमिशन लेने की जरूरत है क्या? क्योंकि 25 किलो का बैग तो लीगल मीट्रोलॉजी के अधीन और 26 किलो का नहीं है। तो मैं एक ऐसे बैग को जो उसके अधीन है, जो उसमें नहीं, उसके दायरे से बाहर चला जाएगा, उसमें कन्वर्ट कर, इसलिए ये मुद्दा लीगल मीट्रोलॉजी के लिए थोड़ा सा जटिल है। लेकिन मैंने कन्वर्ट करके जब बेचा तो उस पे मैं जीएसटी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो 25 क्लियर है मेरे हिसाब से। ट्रू, एग्रीड हम एग्रीड। एक चीज मान लेते हैं, जीएसटी नहीं लगेगा, लीगल मेट्रोलॉजी तो बाद में देखा जाएगा। जीएसटी 26 केजी के बैग में एप्लीकेबल नहीं है, ये सब क्लियर हो सकते हैं। लेकिन आयुष जी इसमें एक चीज ऐड करूंगा, जीएसटी जो नहीं लगेगा वो अभी तक। हमने भी अभी तक ही कहा, अभी हाँ। तक नहीं लग रहा है, कल कल क्या होगा ये नहीं पता। आ जाए डेफिनेटली। ट्रू, चेंज इज द कांस्टेंट ऑफ जीएसटी, तो करेक्ट, वो फिर आएगा तो फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। चेंज इन लिटिगेशन। ओके, एक सवाल आया है, द डीलर रिमेन्स इन कॉम्पोजिशन और अनरजिस्टर्ड ड्यू टू टर्नओवर। उसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा है चल सकता है। आई एम अ पर्सन डीलिंग इन एग्जेम्प्ट गुड्स बट, अच्छा, उनका कहना है कि वो पहले एग्जेम्प्ट थे, अब टैक्सेबल हो गए, तो जो उनका स्टॉक है वो अब टैक्सेबल होगा या वो क्या करे, और अभी वो कैसे सेल करे क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। ट्रांजिशन पीरियड की बात कर रहे हैं बेसिकली। आपने कवर उसमें किया था वैसे इसको कुछ हद वो तक? कवर किया था, कैसे बेचे ये कवर नहीं किया था मैंने। तो उसमें ऐसा है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं आता तब तक आप टैक्स इन्वॉइस सकते। अगर आप B2C सेल कर रहे हैं तो आप उसमें टैक्स का अमाउंट जोड़ के टोटल वैल्यू पे बेचिए, और जब आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तो आप उसके अंदर जो टैक्स का कंपोनेंट है वो आप जमा कर दीजिएगा बैक कैलकुलेशन से। और अगर आप B2B इनवॉइस जारी कर रहे हैं तो अभी आप फिलहाल जीएसटी नंबर लिख के टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, आप उसको एज अ नॉर्मल इनवॉइस इशू करिए, टैक्स का फिगर उसमें आप जोड़ लीजिए, उस इनवॉइस को आप 30 डेज के अंदर वापस अमेंड कर रिवाइज इनवॉइस के तौर पर इशू कर सकते हैं। वहां आप उसमें जीएसटी नंबर और टैक्स का ब्रेकअप डालकर उस B2B पर्सन को वापस दे दें ताकि वो उसका आईटीसी ले सकेगा। और इसमें एक ध्यान देने की चीज क्या रहेगी, जब आप रिवाइज इनवॉइस इशू करेंगे तो उसमें इनवॉइस नंबर के बाद में आर लिखना मैंडेटरी है, बाय वर्च्यू ऑफ रूल 46। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो तो भी रिवाइज्ड इनवॉइसेस होती हैं उसके बाद आर लिख देने से आपका ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो जाता है। वैलिडेट हो जाएगा। एक और सवाल आया है, is e-waybill required when the goods were sold worth more than 50,000 inclusive of exempt and taxable goods, or he can issue one tax invoice and others as a bill of supply on same day? इसमें भी थोड़ा सा रूल्स का कॉम्प्लिकेशन है। अगर हम B2B सेल कर B2B रहे हैं। सेल कर रहे हैं May I तो take this question? हमें, हाँ, यस प्लीज लीजिए ना। yes, please. थैंक यू। रूल 46 कैपिटल ए आपको गाइड करता है कि आप टैक्सेबल और एग्जम्प्ट सप्लाई, दैट इज टैक्सेबल इनवॉइस कम्स बिल ऑफ सप्लाई तभी इशू कर सकते हैं जब B2C सप्लाई हो। और अगर आप B2C सप्लाई में भी अगर ई-वे-बिल जनरेट कर रहे हैं तो रूल 138 बोलता है कंसाइनमेंट वैल्यू सिंगल इनवॉइस में एग्जम्प्ट और टैक्सेबल दोनों मिला के भी 50,000 क्रॉस कर रहा है तो कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 क्रॉस करेगा।
in that case you have to issue an e-way bill. वहां पे लगेगा. अब आते हैं इनका सेकंड जो मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में इन्होंने डाला है. सेकंड क्वेश्चन इनका ये है कि क्या मैं दोनों इनवॉइस को सेपरेट कर दूं. एक टैक्स इनवॉइस जहां पे 50,000 से नीचे का वैल्यू आ जाए और बिल ऑफ सप्लाई जहां पे वो सेपरेट वैल्यू आए. सर एज पर लॉ नो इशू विद दैट. अगर आपका टैक्स इनवॉइस लेस देन 50,000 का है तो वहां पे ई-वे बिल नहीं लगता है. लेकिन ऑन रोड आपको कॉम्प्लिकेशंस आएगी जब वो अपनी कंसाइनमेंट वैल्यू को जब देखेंगे तो दोनों इनवॉइस का चूंकि वो एक ही लॉरी में लोडेड है और सेम पर्सन ने इशू किया, रेसिपिएंट सेम है, तो वो सर लिटिगेशन करेंगे. इट इज सजेस्टेड दैट यू शुड रेज द ई-वे बिल इन दैट केस. इस ई-वे बिल रेज करने में कोई हार्म नहीं है और वो सेफ करना ही रहेगा. चाहिए. अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपके लिए ई-वे बिल रेज करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए. करना ही लिटिगेशन चाहिए. को कम करेगा ये. कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ में थोड़ी कम रहेंगी. यही Yes. इसका फायदा है. True. अगर और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. डायरेक्ट भी अगर कोई पूछना चाहे तो हम उसे अलाउ कर सकते हैं. ओके एक सवाल आया. इन केस ऑफ PWD contractor road already completed last year but bill is not prepared by department and payment not yet received. How to deal with such issue? विकास जी आपने बताया था इस पर, बट एक बार इनको स्पेसिफिकली वापस बता दीजिए. सर आप म्यूट हैं. इनका सवाल क्या है मैं फिर एक बार देख लेता हूँ. कहाँ पर है ये सवाल? चैट बॉक्स में इन्होंने कहा कि वो उनका काम पिछले साल ही खत्म हो गया. PWD हाँ. कॉन्ट्रैक्टर है मगर बिल अभी तक डिपार्टमेंट ने ना बनाया ना पेमेंट मिला. तो अब वो क्या करे? उनका बिल तो पिछले साल मतलब बन जाना देखिए, इट चाहिए. इज सजेस्टेड कि उन्होंने बिल अगर नहीं भी बनाया है 17 जुलाई के पहले की डेट में आप इमीडिएटली बिल रेज कर दो. अपनी GSTR 1 में दिखा दो, GSTR 3 में पेमेंट कर दो. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बिल बनाया नहीं बनाया दिस इमैटेरियल, क्योंकि सप्लाई आपकी हो चुकी है. ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो बिल बनाने वाली जो कॉन्सेप्ट है, GST आने के बाद एक्चुअली अभी भी काफी लोग बिल बनाते ही नहीं है. और गवर्नमेंट का जो बिल है आधे बिल उसी के हिसाब से चल रहे हैं. बट कंपल्सरीली आपको बिल बनाना है तो आप बिल बना दो. उससे कमेगा कम होगा या बढ़ेगा उसका आप डिफरेंशियल. अगर आप नहीं बनाते हो 17 जुलाई के पहले की डेट के तो आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा. ये सिंपल. वेरी क्लियर. सर विकास इसमें थोड़ा एडिशन करना चाहूंगा विथ योर परमिशन. यस यस श्योर. एक साल आप डिले हैं इन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 31, तो आप जो बिल नहीं बनाए हैं एक साल तक उसका इंटरेस्ट भी GST डिपार्टमेंट कलेक्ट करेगा आपसे. डिपार्टमेंट ने 3 साल और नहीं बिल बनाना है तो आपको टैक्स लायबिलिटी कंप्लीट नहीं करना है. ऐसा GST में रिलैक्सेशन नहीं है सर. तो टैक्स प्लस इंटरेस्ट ये दोनों आप लायबल हैं फॉर 1 ईयर. चलिए मगर इसमें अब कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती है क्योंकि ये कह सकते हैं कि हमें सर्टेनिटी नहीं है, हमें अमाउंट के बारे में भी पता नहीं है अभी तक क्योंकि डिपार्टमेंट ने बिल नहीं बनाया. तो AS 9 के हिसाब से हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं. इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं. GST लॉ अपने आप में अभी एक जैसे कह रहे हैं ना, चेंज इज द कांस्टेंट और साथ में लिटिगेशन इज द न्यू नॉर्मल फॉर GST. तो वो इश्यूज आते रहेंगे. एक सवाल है इनवॉइस इशूड ऑन 16 तारीख. अच्छा इनका कहना है कि 16 तारीख को इनवॉइस इशू हो गया पुराने रेट में किसी भी गुड्स के केस में और 18 तारीख को ई-वे बिल जनरेट किया गया. तो कुछ इशू आ सकता है क्या? बंका जी लेंगे इस क्वेश्चन को. कंप्लायंस रिलेटेड है इसलिए मैं चुप हूँ. नहीं कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इशू नहीं आएगा. इनवॉइस 16 का है और आपने ई-वे बिल जो बनाया है वो रूल 138 से गाइडेड है. उसके चलते टैक्स लायबिलिटी आपकी शिफ्ट नहीं होगी. प्लस शायद इसमें कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं कि आप अगर रास्ते में टैक्स रेट या क्लासिफिकेशन के इशू में कभी भी गाड़ी को इंटरसेप्ट नहीं किया जाना चाहिए. तो आपको उस तरह की प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए. मगर डिपार्टमेंटल हाई हैंडेडनेस कई जगह हो रही है, होती है. अब अगर होता है तो यू हैव टू डील विद इट बट यू आर ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड. आपको इसमें लीगली कोई तकलीफ नहीं होगी. इसमें बस एक ही बात है मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट जो है कि भाई सप्लाई जो है वो 18 के पहले हो गई थी, ये प्रूव करना इम्पोर्टेंट हो जाएगा. सो गुड शुड मूव एट द रिस्क ऑफ द परचेजर, नॉट एट द रिस्क ऑफ द सप्लायर. वही अगर ई इनवॉइसिंग आपकी है तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि वो ई इनवॉइसिंग आपकी वेरीफाई हो जाएगी. अगर ई इनवॉइसिंग नहीं है तो इट विल बी एन इशू. व्हाट रेट विल बी एप्लीकेबल ऑन द डिफरेंशियल अमाउंट?
ये शायद उसकी बात कर रहे हैं बेसिकली। वर्क कॉन्ट्रैक्टर के केस में बात करें तो डिफरेंशियल अमाउंट में तो फिर आपका 18% ही लगेगा, अभी अगर बाद में रेज होता है तो बिल, है ना? सही सही। यस। अभय जी पूछ रहे हैं, रागिनी जी के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। रागिनी मैम, प्लीज रिपीट व्हाट इज द implication of GST on small retailer who are selling rice or wheat flour in small quantity which is not pre-packed, rather packed where customer asks. Okay. तो इसमें अभय जी एकदम सीधा सीधा आंसर है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपकी रिक्वेस्ट पे, कि प्री पैकेज्ड और लेबल्ड ये दोनों चीजें जहां होती हैं वहीं पर जीएसटी की लाइबिलिटी आई है। तो अगर हम प्री पैकेज नहीं कर रहे हैं, स्पॉट पर उनको वजन करके सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। बेसिकली कॉन्सेप्ट इतना सा है जो रागिनी मैम ने एक्सप्लेन किया। कस्टमर जब आता है आपकी दुकान में, उस समय अगर आपके एक क्वांटिटी में पैक किया हुआ है और आप वैसे के वैसे उठा के अपने कस्टमर को दे देते हो, तब उसे प्री पैक माना जाएगा। अगर आप उसे उसकी जरूरत के हिसाब से किसी कंटेनर में पैक करके दे रहे हो उसके सामने, तब वो प्री पैक नहीं माना जाएगा। और भी साधारण भाषा में आयुष, इसको अगर हम कहना चाहें कि मेरा कस्टमर अगर मेरे पैकेट पर मेरा लेबल देखकर उसके वजन को मानकर खरीद लेता है, मैंने इस स्थिति में बेचा है तो मुझ पर जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर वो वजन करके देख के डलवा के लेता है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। खुले सामान के क्रय विक्रय पर जीएसटी अभी भी नहीं है। बिल्कुल सही। मुझे लगता है और सवाल नहीं है, तो मैं अपने पैनलिस्ट से बस एक अंतिम कुछ शब्दों के बारे में क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए कहना चाहूंगा। तो क्योंकि लेडीज फर्स्ट, तो मैं वापस से रागिनी मैडम को ही कहना चाहूंगा कि 2 शब्द आप कह के आपका समापन करें। मेरे ख्याल से सारी ही बातें मैंने करी। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हालांकि सर्विसेज विकास जी का एरिया है, लेकिन अब क्योंकि मेन बातें हमने तो थोड़ी सी मिली जुली बातचीत करते हैं। ये जो सप्लाई हो जाने के बाद बिल नहीं बनने वाला जो इशू है, ये एक बहुत अहम और सीरियस मुद्दा है। और बहुत तकलीफ होती है मुझे ये बात करते हुए, जब मैं ये देखती हूँ कि जीएसटी को आए 5 साल हो गए। टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन सर्विस टैक्स में भी हुआ करते थे, वैट में भी इनवॉइस बनाने का एक समय था। उस टाइम क्योंकि पूरा का पूरा वैट डिपार्टमेंट काट लिया करता था और सर्विस टैक्स में आरसीएम के काफी सारे प्रोविजंस थे, इसलिए इसको शायद इतना सीरियसली किसी ने नहीं लिया और एक प्रथा जो चली आ रही थी सालों से वो चल रही थी। जीएसटी को इतना बड़ा इकोनॉमिक रेवोल्यूशन माना गया, सब चीजों को उठा पटक के कानून को इतना स्ट्रीमलाइन किया गया है, और वहां सिर्फ उसी एरिया में जहां गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के ऑफिसेज इन्वॉल्व है, वहां इतना पुअर एक्सेप्टेंस जो लॉ है उसका क्यों चल रहा है और इसके ऊपर कोई क्यों नहीं कमेंट कर रहा। और 47 काउंसिल मीटिंग्स हो जाने के बावजूद क्या ये मुद्दा वहां उठा नहीं? उठा तो क्या उसे सही से समझा नहीं गया और उसे हैंडल नहीं किया गया, या ये प्रावधान किसी को याद ही नहीं आता? टीडीएस लागू हो गया, टीडीएस पूरा नहीं कटता है, एक नोशनल टीडीएस 2% का काटा जाता है। आप सोचिए, आपने कह तो दिया कि भाई बिल नहीं बनाया तो इंटरेस्ट सरकार ले लेगी, लेकिन वो किस मुंह से ले लेगी? और क्या हमारे देश में जुडिशियरी की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है? जिस दिन वो मांगेंगे क्या उनके लिए लेना इतना आसान होगा? आज अगर हम ये कहते हैं हम 17 तारीख को बिल बना देंगे और हम उनको दे देंगे, और वो जिस दिन टीडीएस काटेंगे वो 18% के हिसाब से हिसाब करके काटेंगे, और फिर हम बैठ के उसे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट को रिकनसाइल करके फिर उसके ऊपर जाके हम इंटरेस्ट भर देंगे। ये सिचुएशन कब तक चलेगी? और जो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से मिलजुल कर सारे लोग कब तक डरते रहेंगे, ये सोचकर कि हमने जवाब दिया, हमने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया तो शायद हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। ये बहुत सीरियस मुद्दा है, लेकिन इसको और ज्यादा आग को हवा ना देते हुए मैं फिलहाल एक छोटा सा सोल्यूशन ये जरूर सभी कॉन्ट्रैक्टर से अनुरोध करूंगी कि 17 तारीख तक जो काम कंप्लीट हो गया और जिसका टीडीएस नहीं कटा और बिल्स प्रोसेस नहीं हुए, उस ट्रांजैक्शन को 17 तक के टैक्स रेट से प्रोसेस कर बैलेंस में जीएसटी न्यूट्रलाइजेशन के लिए फॉर्मेट्स इशू किए जाएं। ऐसी एक रिटर्न दरखास्त सभी कॉन्ट्रैक्टर्स अगर डालें तो शायद इस सिचुएशन का एक छोटा सा सोल्यूशन निकलने की उम्मीद तो शुरू हो।
मैं ये नहीं कहती कि शायद इमीडिएट हो जाएगा, क्योंकि ये जीएसटी न्यूट्रलाइजेशन का मुद्दा है। जब चेंज इन टैक्स रेट टेंडर अलॉट होने के बाद आया, तो उसके ऊपर डिफरेंशियल टैक्स रेट 6%, मुझे जो काम बाकी है होना उस पे मुझे करना है, ये मुझे पता है। तो जो हो चुका है उसको पुरानी रेट करना है और उसको टीडीएस से भी मिला के मुझे रिपोर्ट करना है, वरना टीडीएस के मिसमैच की स्क्रूटनी भी हम कराते रहेंगे और इंटरेस्ट भी हम भरते रहेंगे, तो ये सफर कैसे तय होगा। तो ये चिट्ठियां प्लीज दे दीजिए और सभी लोग दे दीजिए कि 17 तक इतना काम खत्म हो गया है, इसके बिल्स 12% पे काइंडली एक्सेप्ट करिए। पेमेंट में बी डन एट कन्वीनियंस ऑफ फंड्स, दैट इज ओके, but bills should be accepted, payments may be deferred, acceptance and processing of bills should not be deferred as a practice, और जो अनडन वर्क है उसके ऊपर न्यूट्रलाइजेशन की दरखास्त लगाई जाए। ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है, इससे जो बिजनेसमैन है वो ही कवर कर सकता है, हम नहीं कर सकते। आप जीएसटी मिला लेंगे मगर बाद में इनकम टैक्स में इश्यूज आएंगे। मैंने तो आएगा, डिस्कस बहुत नहीं जगह करते आएगा। हैं। हमने तो हमारे सारे क्लाइंट को स्पेसिफिकली कॉल करके बोला है कि 17 तारीख का काम का मेजरमेंट लो, जरूरत पड़े तो जो साइट इंजीनियर है डिपार्टमेंट का रहता है जो, उससे इनिशियल करवा लो और उसका एक बिल रेज कर दो। डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करे नहीं करे, हम लीगली फाइट करके आपका 12 में फॉर्मल एप्लीकेशंस डालिए कि इस अमाउंट को मगर एक्सेप्ट प्रॉब्लम करिए। आएगी बाद में जीएसटी या इनकम टैक्स में 26AS रिकॉन्सिलिएशन में आपने जो ठीक है, वो फाइट कर सकते हैं। तो 6% अमाउंट जितना बड़ा हो रखता है ना, उसके मुकाबले में ये फाइट चल जाए तो सारी। यही एक ऑप्शन है आपने जो बताया, मगर इसमें भी प्रॉब्लम्स आएगी, तो सरकार को शायद इजी रास्ता बताना चाहिए इसके ऊपर, ताकि कुछ एक रास्ता निकल सके। विकास सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? एकदम सही है, एकदम सही। रागिनी जी ने बिल्कुल सही बात नोट की है। और इनफैक्ट मतलब जीएसटी से आउट ऑफ जीएसटी जाकर के इन्होंने बिजनेस स्ट्रेटेजी प्लान करी है, और ये एकदम बिल्कुल होना चाहिए कि मतलब 6% डिफरेंशियल रेट जो है वो कॉस्ट नहीं बनना चाहिए अपने इन एनी केस। तो हम आज के इस डिस्कशन से यही लेके जाते हैं कि जो भी बदलाव आए हैं अच्छे के लिए आए हैं, उसने बहुत सारी इश्यूज पर क्लैरिफिकेशंस लाई हैं, जटिलताएं कम हो रही है, होने की तरफ है। सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, शायद उन तक वो जानकारी उस तरह से नहीं पहुंच पा रही जैसे पहुंचनी चाहिए। कुछ बॉटलनेक्स होंगे, कुछ निहित स्वार्थ हो सकते हैं, कुछ भी कारण हो सकते हैं, हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं। मगर सरकार की मंशा पर हम सवाल नहीं उठाना चाह रहे, मगर हम सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे कि हमने जो जटिलताएं डिस्कस की, ये उनके पास भी कहीं ना कहीं से जा तो रहा है, उन तक जा तो रहा है, मगर उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही शायद किन्हीं कारणों से। तो हम यही आग्रह करेंगे कि हो सके, या हम यही आशा करेंगे कि भविष्य में इन पर और 2 मिनट खत्म हो जाए, एक्शन लिया जाए और हम इस पर कुछ और पॉजिटिव डिस्कशन 2-3 महीने बाद कर पाए। इसी के साथ मैं हमारे क्लब सेक्रेटरी अंजनी कुमार मुंद्रा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन दे। थैंक यू आयुष, बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। मुझे लगता है कि सभी ऑडियंस को आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड सबसे पहले मैं अपनी तीनों पैनलिस्ट सी रागिनी गोयल, लायन विकास अग्रवाला जी एंड सी विकास कुमार बंका जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने बहुत ही आसान और शब्दों में जीएसटी की टेक्निकल बातों को रखा है। एंड आई ऑल्सो लाइक टू थैंक ऑल द ऑडियंस जिन्होंने सुना आज, और मुझे लगता है सब आज कुछ लेके जाएंगे इस वेबिनार से। थैंक यू। और मैं दोनों क्लब्स के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी के मैनेजमेंट से भी थैंक यू बोलूँगा कि आपने साथ हमारे साथ मिलके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। थैंक यू सो मच। Thanks to all for patience listening to us. Thank you, sir. Thanks to all. Thank you, everybody. Thank you very much. It was a wonderful session. Thanks, Ayush. We can now close the meeting.